Good afternoon, everyone. Welcome back for the last session for today. And last but not the least, one of the most important sessions, because whatever we may learn today and tomorrow, ultimately it is going to culminate into the report, which is LFAR. So all the issues, practical issues in the LFAR are going to be captured in this session, and we have a very able faculty. He was also in the panel in the morning, and you have already heard from him. By way of formal introduction, I would like to introduce CA Rohit Porwal. CA Rohit Porwal is a practicing chartered accountant and managing partner at S. Jain and Associates, where he leads the Surat branch with over 8 years of experience in audit and taxation. He holds advanced certifications in information systems audit and forensic audit, and is currently pursuing a PhD in commerce. A regular speaker on bank audits, he also serves as a nominated member of the Banking, Financial Services and Pension Committee of WIRC of ICAI. With this, let's welcome CA Rohit Porwal, and I would like to request CA Piyush Chandak and CA Jinal Savla to felicitate our faculty with a small memento. Thank you. फ्री दे दीजिए मुझे. गुड इवनिंग एवरीवन. वापस बोलूँगा गुड इवनिंग एवरीवन. बस थोड़ा सा बोदर ज़रूर करूँगा आप लोगों को कि वैसे तो चाय टी ब्रेक हो गया है, बट दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट सेशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्टिंग विल बी डन LFAR. So before starting of the session, I would like to thank Team WIRC, Chairman CA Saurabh Ajmera, Chairman of Banking and Pension Committee, BFSI, CA Piyush Chandak ji. Thank you so much for inviting me over here, for taking this session on the topic. I'd say it is most important topic and a lovable topic of mine, because जितना शायद टीम में RCM को पता भी है, रीजनल काउंसिल को, कि मैंने LFAR बहुत बड़े बड़े बनाए हैं. द रीज़न इज़ व्हाट वी हैव टू राइट इट एंड हाउ शुड राइट इट. ऑल्दो द LFAR टॉपिक इटसेल्फ इज एन 3-hour टॉपिक at least, but because given a time of 1.5 hour, I'll try to cover most important topic of LFAR. Rather for fully covering the LFAR topic, I'll try to take some of the question of yours, because मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्वेश्चंस जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर इज मैं मेरा सेशन दे दूँ. सो आई विल टच ऑल द टॉपिक्स. लेटर ऑन आई विल टेक 15 or 20 minutes क्वेश्चन ऑफ योर्स. सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन रिलेशन टू द बैंक ब्रांच ऑडिट, आइदर इट इज सेंट्रल ऑडिट. मंगेश भाई ने बोला है कि आई वॉज इन पैनल बट आई वुड नॉट बी एबल टू रीच बिकॉज ऑफ आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम समवेयर एल्स एंड टेकन सेशन एट अनदर ब्रांच. सो इन द मॉर्निंग आई वॉज नॉट देयर, बट आई विल ट्राई टू compensate that thing that I was not able to answer few of your query. With this, without taking much time, I'd like to start the LFAR. I'd request our team to give me a hand free. Yes, I am continuing with that, no problem. So before proceeding further, it is a disclaimer from my part that whatever I am sharing, because I will be sharing some of the example, practical problems, whatever I am facing in relation to the verification of advances or the LFAR, these are my personal view, not the view of ICI, neither WIRC. Hello. It should not be treated as my professional advice. It is just for the purpose of education. That's it. So from since morning, hello, are you with me now? Yes. Great, done. So मैं पूछता रहूँगा थोड़ी टाइम पे आप. Sorry. I fell out. So we were listening to able faculty since morning, because we heard central auditor as well. Dhananjay bhai was there, Abhijit sir was also there. So we heard that what are the most important topic in the bank branch audit. But I like to give you a background. कितने लोग पहली बार ऑडिट करने वाले हैं इस बार? बहुत कम है, ठीक है. Means we have the idea what is the coverage of a bank branch audit. So I will take a
ओवरव्यू ऑफ दैट शायद हमने डिस्कस नहीं किया. इज ओके दैट आई विल स्पीक लिटिल बिट हिंदी? हेलो. थैंक यू फॉर परमिटिंग मी. सो बैंक ब्रांच ऑडिट में ओवरव्यू ये है कि हमको क्या क्या करना है. मैंने एक लिस्ट आउट बनाया है व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बैंक ब्रांच ऑडिट. थैंक यू. या सो व्हाट इज बैंक ब्रांच ऑडिट एंड व्हाई देयर इज सो हाइप अबाउट इट. क्यों लगता है व्हाट्स सो डिफरेंट बिटवीन दैट? पब्लिक मनी, बट वी आर डूइंग लिस्टेड कंपनी है, वहां भी तो पब्लिक मनी एंगेज्ड है. मैं ये मानता हूं बिफोर बिकॉज आई विल मूव फर्दर बिकॉज लिमिटेशन ऑफ टाइम. सर बैंक ब्रांच ऑडिट इज नथिंग एल्स अदर देन ऑडिट वेयर वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, whether they are giving true and fair view or not. Is it correct? Then other than that there are some certificates which has to be signed, but the moral responsibility that the branch which we have been allotted, that these financial statement, that only difference is the financial statement has been prepared in according with banking regulation act. क्या ये पहली बार है कि कोई other than companies act हम financial statement sign करने वाले? नहीं ना. Because if you are doing engaged in government audit, electricity audit, insurance company, these all also having a separate financial statement. Na? Similarly, banking has a financial statement separately, which has been prepared under Banking Regulation Act. Done. So our foremost responsibility is audit of financial statement, and our liability is to reduce our risk at acceptably low level in the given period of time. Although I was there in the morning session and I raised myself कि बहुत कम समय में ऑडिट करनी पड़ती है, उसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन भी अपन डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द प्रॉब्लम इज प्रीति मैडम ने सुबह सुबह पिंकी मैडम ने एक क्वेश्चन रेज किया, सर डेटा लेने नहीं देते, रिपोर्ट ऑटो फिटेड है जिसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं. 1 और 2 बैंक, 3 बैंक्स मुझे पता है किन किन का है, उनमें ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई आती है, ऊपर से डेटा FRN नंबर डालो, पार्टनर साइनिंग डिटेल, मेंबरशिप नंबर डाल के प्रिंट निकल जाती है. प्रिंट भी नहीं चाहिए, उनका डिजिटल साइन सिस्टम में ही लग जाता है. इन दैट केस व्हाट इज द ओपिनियन? बिकॉज वी आर बाउंड टू गिव द ओपिनियन. दैट इज, 2 तरह की ओपिनियन होती है. कौन सी? हेलो, मॉडिफाइड एंड. सो बैंकर ये चाहता है कि हमको दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं है, तो दे वांट एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन. बट नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन बैंकिंग में आ कैसे सकता है? इज इट करेक्ट? देयर आर मल्टीपल पॉइंट. सर मैंने एक डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया एक ब्रांच में, इज इट पॉसिबल? बस इस पे कोई डाउट नहीं. सो क्यों दिया सर? बिकॉज if the materiality is so high and due to the limitation of time I am not able to verify all the accounts, then what I can do it. Example देता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा. I was doing one of the branch, very small branch, since 4 years back. So the branch was having only advances of 80 crore rupees. It is a private sector, government nationalized नहीं था. It was a private sector bank where the branch audit is also there. Okay. So the total advances of the branch is 80 crore rupees. Out of which more than 75% are gold loan. What is that? Gold loan. Gold. Then in that case, because मैंने क्या बोला, सर मेरा पहला इंटेंशन, अगर कोई बोले बैंक ऑडिट में क्यों जाना है, क्या करना है, एमओसी निकालनी, सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है. मेरा इंटेंशन है काम अच्छा करो, एमओसी अपने आप आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी. सो आवर इंटेंशन इज टू रिड्यूस आवर रिस्क एट एक्सेप्टेबली लो लेवल. दैट्स इट. उसके लिए मुझे जो जो करना है, प्लानिंग, प्रोसीडिंग और सैम्पलिंग, सब कुछ करूंगा. सो आई वॉज डूइंग एन ऑडिट ऑफ दैट ब्रांच. 80 crore advances, 60 or 55 crore rupees was the gold loan. So it is my understanding, we do sampling, we all do sampling. Sampling should cover all the population. Population means sampling should be justified the population of the advances, which should cover previous year advances as well, advances sanctioned during the year as well. There are certain advances which has to be taken, which is mentioned in the LFAR itself. कौन से हैं? 10% and 10 crore rupees, whichever is less. These are the sample which has to be compulsorily selected by the auditor. क्या है ये 10% तो 10 explain करना पड़ेगा.
आपको जहां जहां लगे प्लीज आस्क मी. हो सकता है सेशन अपन 15 मिनट ज्यादा चलाएंगे WIRC की परमिशन लेके, बट एटलीस्ट वी विल डिस्कस इट. इज इट करेक्ट? सर पीयूष सर बैठे हैं जब तक ठीक है अपने लिए. सो 10%, इफ एग्जाम्पल ले लेता हूं छोटा, अगर कोई नहीं है, 90 करोड़ रुपीज योर ब्रांच, you have to compulsory select a sample for an amount of 9 crore rupees and more. If there is any advances, I'm sorry. So 90 crore rupees, that is 10% of advances or 10 crore rupees, whichever is less. So every account having total outstanding balance. The word is very clear. Outstanding balance, total outstanding balance as on 31st March. If it is higher than that limit, it is compulsory under audit. Now problem is sample selection तक तो ठीक था 2020 तक, पर 2021 में जब न्यू LFA आ रहा है जिसके ऊपर इतना डिस्कशन अपन कर रहे हैं आज, that is the problematic to me as well as savior. दोनों बातें करता हूं मैं, अच्छा भी है और खराब भी है. क्यों सर? आपको everyone aware that we have to give detail of each and every account which we have verified, selected for sample in the LFR itself. So it is good for me and bad for me. How it is good for me? If there will be any responsibility coming in the later period of time in the account other than this account, then I can say it. We have done audit according to standard auditing, which ask us to do sampling. And due to this sampling methodology, this account was out of my sample. So you will be. Now अब problem ये है कि अगर जिन account का list आपने दिया उनमें से निकला तो correct ना? So problem भी है और ठीक भी है. तो मेरा एक humble request है आपसे, kindly mention only those account which you have literally verified. Hello? आपने सच में देखा है तो ही डालना, नहीं तो कम अकाउंट जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अकाउंट जो नहीं देखा है डालने का, क्योंकि देयर आर सर द प्रॉब्लम इज, और वेदर एडवांसेस हैज टू बी वेरीफाइड नॉन फंड बेस और फंड बेस बोथ. पैसा फंड बेस का मिलता है देखना, क्योंकि वहां जो परसेंटेज आता है टोटल अभी बताऊंगा उसमें दोनों है, नॉन फंड बेस एंड फंड बेस दोनों कवरेज करता है. करेक्ट? नाउ व्हाट आई सेड इट. अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन पे, जो सुबह मॉर्निंग में डिस्कस हो रहा था. सर 1 या 2 बैंक ऐसा है जो मुझे डेटा भी नहीं लेने देता. अब नहीं लेने देगा, और एक्चुअली उनका प्रॉब्लम वो नहीं है. आई एम डूइंग स्टॉक ऑडिट एंड ASM ऑफ दैट ब्रांच, दैट बैंक एज वेल, जिनका आप सोच रहे हो उसी का नाम नहीं लूंगा. सो मैं उसका स्टॉक ऑडिट कर रहा हूँ, मेरी ऑफिस या ASM कर रही है या फॉरेंसिक करती है. दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट दे कैन नॉट शेयर द डेटा. मेरी मेल पे भेज भी दूंगा तो नहीं आएगा. ब्रांच चाहेगी तो भी वो मास्क दे. सर बोले, सर शायद किसने बोला था सुबह, गिराज जी ने बोला था. सो गिराज सोनी जी सेड कि मास्क के बाद भी जा सकता है. सर वो भी नहीं जाने दे रहा है, प्रॉब्लम है. सर अब क्या करें? पीयर रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, लाइबिलिटी इन रिलेशंस, तो मैंने बोल तो दिया, लिस्ट में नाम डाल दिया, कहीं प्रॉब्लम हुई तो नाम मेरा आएगा. नाउ व्हाट टू डू इन दैट केस? हेलो, कैसे बताओगी कि ये अकाउंट मैंने ठीक से वेरीफाई किया? जब तक इंस्टीट्यूट है तब तक तो समझ में आ जाएगा. व्हेन इट इज लेटर केम फ्रॉम CBI, लेटर केम फ्रॉम ED, MCA, तब क्या करेंगे? वी डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि लिया ही नहीं. कैसे प्रूव करोगे कि आपने वो अकाउंट देखा है और ढंग से देखा है? ना व्हाट वी हैव डन फॉर दैट पर्पस, कि जब से ये समझा है, वी हैव मेक अ चेकलिस्ट. इट्स कॉल इन माई, मैंने ही बनाई है, ये मेरे लिए समझ लीजिए, बट आई हैव शेयर टू मेनी पीपल. मैं WIRC को दूंगा, अगर आपके काम में लगती तो लगाइए. एक लोन वेरिफिकेशन चेकलिस्ट बना रखी, एक सिंगल पेज की. सिंगल पेज में मैंने जितनी डिटेल असेंशियल है, विच कैन सेव मी ए लेटर पीरियड ऑफ टाइम, उतना डिटेल वेरिफिकेशन में मेरे स्टाफ को पकड़ा देता हूं. किसी भी आर्टिकल को भी दूंगा तो समझ में आएगा. व्हाट आर द थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन लेटर पीरियड ऑफ टाइम, वो मैं लिख के रखूंगा. तो मेरे लिए 2 काम हो गया. सेवियर क्यों? पीयर रिव्यू आया, बता सकता हूं कि मैंने वेरीफाई किया है. कहीं फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, सर मैंने देखा था, उस टाइम तक सब कुछ ठीक था. अगर आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा कि मैं डेटा शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, बट वेदर वी हैव मेंशन समवेयर इन एंगेजमेंट लेटर, कहीं लिख दीजिए सर. अब ब्रांच अलॉटमेंट आएगी जब एंगेजमेंट लेटर लिखेंगे ना, सो आवर ऑडिट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वेरिफिकेशन एट द ब्रांच लेवल इटसेल्फ, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू टेक द डेटा एट अ होम. So at later period of time, if any agency will be called for the data, we will be required to take from the branch. Hello?
फिर बाद में बोलोगे 3 साल बाद 5 साल, सर मैं थोड़ा हो सकता है, एक बात है मेरी ओपिनियन माइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑफ स्पीकर, पर मैं सोचता हूँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे अपने को, काम करना है, फीस अच्छी आती है, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। पीयूष भाई करेक्ट है ना सर? अब काम तो करना ही है, कैसे करना है बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमको सेव करते हुए वो समझना है अपने को। सो व्हाट वी शुड डू, राइट इन एंगेजमेंट लेटर एट लेटर पीरियड ऑफ टाइम इफ एनी एजेंसी विल बी आस्किंग द डेटा इन रिलेशन टू फॉर द ऑडिट पीरियड इटसेल्फ। मेरे काम की बात कर रहा हूँ सर, बाकी आपसे अननेसेसरी आऊंगा ही नहीं आपके पास। सो मेंशन इन एंगेजमेंट लेटर। एंड सर आज ब्रांच मैनेजर, सर है ना, मैं हंसी की बात लगेगी आपको, मैं आज ब्रांच के लिए दूल्हा हूं। हेलो जमाई, ज्यादा अच्छा है जमाई बोल दीजिए, मैं आज दूल्हा हूं, जो मांगूंगा, ऐसा नहीं कि दुल्हन बदलने के लिए बोल दूं सॉरी, मतलब एक रीजनेबल लेवल पे आप जो मांगोगे ना आज सब कुछ मिलेगा। एंगेजमेंट लेटर मिलेगा, एमआरएल मिलेगा। सर कैसा बनाना चाहिए? कुछ नहीं करना, गाइडेंस नोट में जो एमआरएल बना हुआ है, एंगेजमेंट लेटर बना है, प्रिंट लगाओ, ऊपर नीचे नाम चेंज करके छाप के भेज दो। 2 चीज ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं आएगी। हेलो, अपने को मेरा पर्पस क्या है? आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्क। मेरा काम क्या है? मेरे को मेरी रिस्क कम करनी है। अगर फ्यूचर में कुछ लफड़ा हुआ, आई एम शाइड टू बी सेव समहाउ, करेक्ट? सो एंगेजमेंट लेटर, एमआरएल, एनओसी, प्लीज 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 कम्युनिकेट टू द प्रीवियस ऑडिटर, नॉट इन रिलेशन। एनओसी आप भेजते ही भेजते हैं, मुझे पता है, बात करिए। बहुत लोग करते होंगे सर बात कर, सर अपना भाई है, मैं ये समझता हूँ भाई या बहन, दीज आर द प्रोफेशनल कलीग, they will be able to share you some insightful knowledge, some insight about the branch, what is happening, what was his analysis, what he has done. Furthermore, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस ब्रांच में आपको कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ब्रांच मैनेजर कैसा था, वो आप सपोर्टिव है कि नहीं है? सपोर्टिव है तो अगर वही ब्रांच है तो आपके लिए क्या लगेगा, ठीक है, नहीं तो दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको। So planning will be depending on the persons to person as well. So please talk to them. मैंने सर हर बार every time I have to communicate, बात करता हूँ आराम से, अच्छे से बात करते हैं। और ऐसा होता है ना सर, when like we are category 1 firm, तो ऐसा लगता है कि घूम फिर के 15-20 ब्रांचेज है, उसमें से 4 साल में 8 ब्रांचेज आने वाली है। हेलो, तो 8 ब्रांचेज में ऑडिटर घूम फिर के या तो वो मेरे से एनओसी मांगेगा या मैं उससे मांगता हूँ। समझ गए ना आप मेरी बात? तो मैं भी उसको कुछ बता देता हूँ, वो भी मुझको कुछ बता देता है, सर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, बोले सर और कोई अकाउंट है सर, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है सर, बाकी मेरा एलएफआर पढ़ लेना, बाकी सब कहानी पता चल जाएगी, करेक्ट? सो वो बोलेगा सर आप शेयर कर सकते हो क्या, देख लो अपने हिसाब से ठीक है ना सर, प्रोफेशनल ब्रदर है मेरा, विच इज अवेलेबल टू हिम एज वेल, सो टेक बेस्ट जजमेंट अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो मेरा पर्पस इंटेंशन क्या है? ओवरव्यू बैंक ब्रांच का बोल रहा हूं। मेरा माई होल पर्पस इज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन ऑडिट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब ऑडिट की बात करता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम ले रहा हूं, सो योर फोकस शुड नॉट ओनली ऑन द असेट साइज, योर फोकस शुड नॉट ओनली ऑन, इट शुड ऑल्सो सब आवर ओपिनियन ऑन द असेट एंड लाइबिलिटी एज वेल। और रिसेंटली 2 केस तो ऐसे हुए जिसमें लाइबिलिटी में ही प्रॉब्लम हुई है। हेलो, कौन कौन से? दोनों आपको पता ही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इट केम इनटू द डिपॉजिट इटसेल्फ। मुंबई का एक परफेक्ट एग्जांपल है, डिपॉजिट में प्रॉब्लम आई है। अब एडवांस नहीं आएगा सर, मुझे लोग बोलते हैं कि बैंकिंग इज एन सर्विस, मेरे हिसाब से बैंकिंग इज प्योर बिजनेस। यूनाइटेड स्टेट कंसिडर बैंकिंग एज एन बिजनेस, पैसा गया तो तुमको देना पड़ेगा। यहाँ क्या है, गवर्नमेंट एक पैसा सपोर्ट दे देती है कि ठीक है यस बैंक जा रहा है, तकलीफ आ रही तो एसबीआई को लगा दिया, अदरवाइज इट इज प्योर बिजनेस। दे हैव कलेक्ट द डिपॉजिट, दे विल गिव मी एन लोन एंड एडवांसेस, डिफरेंस 2-3% आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इनकम ऑफ। सो हमको दोनों साइड फोकस करना है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द, ऑल्दो चांसेस विल बी लेस बिकॉज कंट्रोल आर इंप्लीमेंटेड बिकॉज पब्लिक मनी आर इन्वॉल्व, पर वो कंट्रोल को टेस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। हेलो, ना आईसीएफ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंट्रोल क्या देखना है अभी मेरे को, आई एम नॉट इवन अवेयर दैट व्हाट कंट्रोल हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन द ब्रांच
and the branch auditor is asked to give reporting on internal financial control. Hello? सर मैं दोनों करता हूं, ब्रांच एंड सेंट्रल, वो कैसे मत पूछना बस, पर हाँ मुझे पता है कि ब्रांच ऑडिटर भी क्या फेस करता है. एक LFR में एक पॉइंट है, मैं भी लास्ट में ले लूंगा पर अभी बोल रहा हूं. सर काइंडली गिव योर कमेंट ऑन द MIS विच हैज, नहीं काइंडली गिव कमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन टेकन बाय द हेड ऑफिस इन प्रिपरेशन ऑफ MIS इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट हेड ऑफिस लेवल. मैं कमेंट करूं कि जो डेटा हेड ऑफिस ने लिया है अपने MIS बनाने के लिए वो बराबर है कि नहीं है. अरे कौन सा डेटा लिया पहले ये तो बता दो. हेलो, जग रहे हैं सब? मैम मुझे नहीं पता ना, तो मैं क्या रिप्लाई करूं उसका? यस लिख दूं? हेलो, उसके लिए क्या सर ना LFR बहुत डेंजरस है. हमने क्या है, ऑडिट ओपिनियन तो अनक्वालिफाइड वैसे भी दे दी, ऑडिट ओपिनियन दे दी, सर्टिफिकेट को देखा नहीं, साइन करके दे दिया. अब जो चीज बचाने लायक था LFR उसमें यस नो करके छोड़ दिया. सो हमको MIS में लिखना है कि आई एम नॉट अवेयर. माई सजेशन, वापिस बोल रहा हूं, मेरा सजेशन है, मैं क्या लिखता हूं, आई एम नॉट अवेयर दैट व्हाट information has been extracted from this branch by the head office while preparation of the MIS at head office level. मुझे बताओगे कि क्या है, तब पता चलेगा ना तुमने क्या किया है. सो सर मैं क्या बोला, दूल्हे हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, कोई देखने वाला नहीं. तो अपने सेवियर की चीजें लिखो ना, क्यों किसी को ओबलाइज करने का. वैसे भी ब्रांच मैनेजर तो बोलता है सर कुछ भी लिखो, एमओसी मत दो. करेक्ट, मैं गलत तो नहीं हूं ना? सो फिर हाँ ठीक, थैंक यू सर. सो सर ये कब आएगा पता है आपको? मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप, मुझे ये पता है कि इस ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे हैं सबके पास बैंक ऑडिट आने वाली है. अगर आने वाली है मैक्सिमम के कास में, तो आज एक काम करिए, 15 दिन के लिए सब बिजनेस बंद कर दीजिए, जो आप दूसरी ऑडिट कर रहे हो स्टॉप कर दीजिए, केवल बैंक ऑडिट पे फोकस कर लीजिए. यू विल गेट एन गुड क्वालिटी. मजा आएगा सर ऑडिट करने में. दिस इज माई इंटरेस्टेड टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू. मेरा स्पीकिंग शायद हो सकता है अच्छा नहीं है, हो सकता है अच्छा हो, पर ठीक है, थोड़ा बहुत शायद जो सीखा है वो शेयर करूंगा आपके साथ में, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन टू द टॉपिक सिंस लास्ट 12 ईयर. आर्टिकलशिप से आज तक यही किया है. सर द रीजन इज इन्वॉल्व योर सेल्फ. 15 दिन कुछ मत करिए सर, छोड़ दीजिए. द रीजन इज सर वैसे भी 7 दिन मिलता है पूरे साल में, हम ये बैंकिंग देखते ही नहीं है. हम कॉन्करेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता. 50% लोगों के पास नहीं होगी, आपको सिस्टम आता नहीं होगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग, हाँ, डोंट टेक मी अदरवाइज. मैं किसी इंडिविजुअल पे कमेंट नहीं कर रहा. 50% लोगों में से हम लोग सिस्टम नहीं आता होगा. देयर आर सेपरेट सिस्टम, फिनेकल और बैंक्स 24. केनरा बैंक अलग ही, वो सबसे भारी है अगर किसी के पास है तो. बैंक्स, अरे सर फ्लेक्सक्यूब इंटरनेशनल जमाने में जी रहा है, हमको सोच ही नहीं सकते. फिनेकल तो चलो मैं भी सोचता हूँ कि 50% लोगों को आता होगा. केनरा बैंक गलती से आ गया तो किसी को ही नहीं आएगा. इतने सारे कंट्रोल है कि पूछे मत. वहाँ एम्प्लॉय वाइज रेस्ट्रिक्शन है सर, SAP जैसे कि स्केल 1 के पास इतने पावर है, स्केल 2 के पास इतने पावर है. सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, फिनेकल और बैंक्स 24 अगर चलाना है आपको, इफ यू आर गुड एट इट, टेक द लॉगिन एंड पासवर्ड. रिकॉर्डिंग हो रही है क्या इसकी? ठीक है, तो टेक अ लॉगिन पासवर्ड ऑफ द ब्रांच मैनेज ऑफिसर. आपके अंदर, आपके पास बहुत सारे कोड्स होंगे, आधे से चलेंगे ही नहीं. वो देंगे आपको कॉन्करेंट ऑडिटर का लॉगिन. आपको लेना है रिपोर्ट सर्वर का लॉगिन, ब्रांच मैनेजर का, ब्रांच ऑफिसर का, क्योंकि वहाँ ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते. हेलो, वहाँ ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, रिपोर्ट सर्वर में अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्रीली खेलने का. तो डेटा कुछ भी मिल सकता है वहाँ पे और अच्छा मिलेगा. आधे से ज़्यादा जो फिनेकल के कोड्स है ना, वो ऑडिटर लॉगिन में चलता ही नहीं है. फिर आप मांगोगे, बोले सर देता हूँ, सर 4 बजे के बाद देता हूँ, फिर 6 बज गई, सर सब स्टाफ, लेडी स्टाफ जा रही है, कमेंट नहीं है, वो प्लान्ड है, बाकी 8 बजे तक दुखती होगी, पर उस दिन जरूर जाएगी. प्रैक्टिस सर मेरे साथ हुआ है. बेंगलोर गया सर, 2.5 घंटे लगेंगे. मैं बोला मैडम रोज जैसे कैसे जाते हो? बाद में पूछा मैडम, बोले मेट्रो से. कितनी बजे? 7 साढ़े 7. तो आज 5:30 टैक्सी में क्यों जा रहे हो?
ठीक है, ये सब कुछ मैनेज करना है हमको सर। 5 दिन अच्छा पॉजिटिव रही है, फिर आपको जो करना है कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट अ गुड डेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। LFAR पे बात डिटेल में करेंगे, सर्टिफिकेशन की बात थोड़ी सी कर लेता हूं। सर क्यों कवरेज शायद कोई और अदर स्पीकर करेगा नहीं करेगा, मैं कर देता हूं थोड़ा सा। सर्टिफिकेशन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम अभी तक मैंने बोला ट्रू एंड फेयर व्यू सब तक ठीक था, यहां कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए फीस भी नहीं मिलती अलग से, क्योंकि ब्रांच का एडवांसेस कितना उसी पे मिलती है ना, ऑडिट ओपिनियन दी है ये सर्टिफिकेट का, बाकी तो हम नेटवर्क सर्टिफिकेट कुछ भी चार्ज करेंगे वहां पैसा मिल जाएगा यहां। और हाईएस्ट कवरेज ऑफ रिस्क। सर प्रॉब्लम क्या है, सब बोलते हैं सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डेटा नहीं, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, पर जब मैं क्लाइंट से बात करता हूं तो आई हैव सम डेटा ऑन विच आई कैन वेरीफाइड एंड गिव माई कमेंट। नाउ द प्रॉब्लम इज हियर, द डेटा इज वास्ट, number is so big and will be provided to me on the date of signing. हेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर्टिफिकेट साइन करने में ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। सर क्लोजिंग सर्कुलर सबके पास आएगा, क्या बीमारी है क्लोजिंग सर्कुलर? हेलो, सब है? आवाज धीरे हो गई है। हेलो, थैंक यू। क्लोजिंग सर्कुलर क्या है? सर ये भगवत गीता है हमारे लिए बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए। काइंडली रीड क्लोजिंग सर्कुलर बिफोर गोइंग टू ब्रांच। पहली बार जब पढ़ेंगे ना सर, एक बार, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है 2 घंटे का समय देखिए, एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि जब हम दूसरे क्लाइंट्स का ऑडिट करते हैं तब हम बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना होगा। आई एम सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये पता होता है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बना, कौन कौन से अकाउंट्स को लिया होगा, किस किस का प्रोविजन किया, कैसे किया, ये सब पता चलता है। आई एम स्पीकिंग सिंस लास्ट 10 days, सो लिटिल बिट प्रॉब्लम। हमको पता है कि बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने होंगे, पर यहाँ पता ही नहीं कि स्टेटमेंट बना कैसे। क्योंकि क्या है, कैसे बनता है सर, बैलेंस शीट कैसे बनती है सर, एक बात करते हैं। हमको बैकग्राउंड, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए सर। बैंक का कोई भी बैलेंस शीट और P&L कैसे बनता है, दे हैव ईच एंड एवरी अकाउंट नंबर। हेलो, हाँ, अकाउंट सबका है, तो वो क्या है, वो मेरे लेजर्स है। वहां अपने इंडिविजुअल अपन टेली में जो करते हैं ना कि लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, वहां से P&L और बैलेंस शीट बनती है, वो कौन कौन से लेजर है या अकाउंट नंबर है वो हमको पता है क्या? हमने ब्रांच की ऑडिट कर दी और कभी जोटिंग नहीं लिया। लिख लीजिए सर, बैलेंस रिपोर्ट मांगनी है आपको। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? ये बैलेंस रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट वेयर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। बैलेंस रिपोर्ट 2 तरह की निकलेगी, एक डिटेल्ड और एक एडवांसेस। वो आपको हर बार एडवांसेस वाली देगा, डिटेल कोई नहीं देगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ बैलेंस रिपोर्ट। सो आपको BR लेनी है, BR डिटेल्ड लेनी है, तो आपके पास वो डेटा आ गया है जिसके बेसिस पे P&L और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। इट्स इंक्लूड इंटर ब्रांच अकाउंट, P&L अकाउंट, असेट अकाउंट, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी, ऑल बैलेंस शीट, P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असेट एंड लाइबिलिटी, सब कुछ कवर हो गया जिससे आपकी बैलेंस शीट बनी है। तो आपके पास डेटा, उससे क्या करोगी सर आप? वो आपके इतने वो आपके इतने काम का आएगा कि आपको कुछ भी चेक करना है, सेविंग, टर्म, लोन एंड एडवांसेस, किसी भी नेचर के अकाउंट, उसका बैलेंस वहीं मिल जाएगा। जब आप LFAR की फीडिंग करेंगे तब आपको 2 चीजें हमेशा चाहिएगी। क्या? लोन अकाउंट नंबर, आउटस्टैंडिंग, 2 तो आपको हमेशा मिल जाएगा। CIF जरूर चाहिएगी। CIF मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो डालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिस दिन 5वें दिन आप वर्किंग करने जाएंगे। सो दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस। तो पहले ही प्लान करिए कि जिस दिन आप अकाउंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं 3 चीजें जरूर से लिखिए, लोन अकाउंट नंबर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। लास्ट में 3rd कॉलम होता है, 4th कॉलम क्वेरी। सो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। सर्टिफिकेट की बात करते हैं सर, डेटा क्या है ना, प्रॉब्लम ऐसा नहीं बैंक वाला देना भी नहीं चाहता, उनके पास 5 तारीख तक डेटा ही नहीं आएगा।
बिकॉज इट इज़ कंसोलिडेटेड हेड ऑफिस का सिस्टम समझ लीजिए सर, क्योंकि आपको लगेगा कि कैसे सॉल्यूशन निकालना है इसका। एचओ में क्या होता है सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एग्रीकल्चर का, दैट इज कंसेशन 3%, वो डेटा कहाँ से आता है, एग्री डिपार्टमेंट से आता है। एनपीए प्रोविजनिंग वो डेटा सेमवी से आता है। गवर्नमेंट बिजनेस डीआईसीजीसी वो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से आएगा। एमसीबी यानी मिड कॉर्पोरेट ब्रांच से उसका कोई अलग सबमिशन है, जैसे एमएसएमई का सबमिशन है ना 1% 2%, वो अलग आएगा। रीस्ट्रक्चरिंग का सर्टिफिकेट वो सेमवी से अलग आएगा, सेमवी यानी एनपीए डिपार्टमेंट। सो ये सब डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से आने वाला है। वो कहाँ आता है, रीजनल ऑफिस पे, और रीजनल ऑफिस वाले कंपाइल करके आपको एक साथ पकड़ के दे रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि उनके पास डेटा नहीं है पर ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो आप ज्यादा रायता फैलाएंगे। हेलो, सो आपको आरओ से नीचे नहीं आता डेटा, सर ये डेटा है फीड करो डेटा बराबर, बद्दू सिस्टम, गुजराती वर्ड यूज कर रहा हूं, सब कुछ बराबर है, बद्दू सिस्टम जनरेटेड है। हाँ, सब कुछ सिस्टम से जनरेट किया हुआ है। सो गार्बेज गोज इन, गार्बेज गोज आउट। एक परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं, इंटरेस्ट रेट। मतलब सर ये कवरेज है, मैं जो भी ये अगर लग रही है आपको बकवास है पर वो काम किया। सो एक इंटरेस्ट का एग्जांपल लेता हूं, इफ द रेटिंग, एक्सटर्नल रेटिंग इज नॉट अपडेटेड इन सिस्टम, कैन इट इंपैक्ट एनीवेयर ऑल्दो इट इज मेंशन इन द सैंक्शन लेटर? Any account having 25 or 50 crore rupees as the case may be, depending on the bank to bank, if all the outstanding of all banking facility is more than that amount, the borrower has to get their external rating. आजकल हर बैंक में इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है, या तो इंटरनल रेटिंग से या एक्सटर्नल रेटिंग से। जहां एक्सटर्नल है वहां से एक्सटर्नल से ही। बैंकिंग में एक रूल है, अगर आपका सैंक्शन लास्ट में हुआ है, इफ योर सैंक्शन हैज बीन डन लास्टली एट एक्सटर्नल रेटिंग ऑफ AA या A मान लीजिए, if there will be any downfall in the rating of 1 notch, your interest will be increased by 1.25%. Hello, interest, और there is nothing manual intervention in interest, कुछ भी नहीं manual intervention, but बहुत कुछ है। क्या आपको कार्ड रेट डलती है, सिस्टम कैसे रन करा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद LFR पूरा ना कर पाऊं पर आपको सोचने का नजरिया दे दूंगा। सर सिस्टम में इंटरेस्ट रेट की बुकिंग कैसे होती है? आजकल आपने अगर कोई भी सैंक्शन नोट देखा होगा, क्या लिखा होता है सर? बेस रेट दैट इज BR प्लस स्प्रेड। स्प्रेड में 3 तरह की स्प्रेड होती है, नॉर्मल प्रीमियम, स्पेशल प्रीमियम, माइनस कंसेशन। इसको बोलते हैं, या माइनस के पहले का जो फिगर है ना, इसको मैं कार्ड रेट बोलता हूं। हेलो, BR इज फिक्स्ड, बेस रेट या रेपो रेट RBI डिसाइड करेगा, बैंक अपने आप चेंज कर देगा। इट विल बी चेंज इन द सिस्टम इटसेल्फ। नाउ बाद में क्या करना पड़ता है किसको? बैंकर को। बैंकर इसके अलावा बाकी का काम केवल कंसेशन डालता है मैन्युअली। लास्ट में जो कंसेशन है 2.5%। से फॉर एग्जांपल BR इज 8%, BR इज स्प्रेड है उसका, जैसे MSME AA रेटिंग या A रेटिंग, उसका स्प्रेड है 2.5 प्लस स्पेशल स्प्रेड इज 2%। सो कितना हुआ? 8 2 10 12 12.5%। क्या AA रेटेड वाला 12.5 में लेगा? नहीं लेगा, उसके लिए माइनस लगेगा 4% का माइनस। तो आपको केवल 2 काम करने हैं, आपकी रेटिंग अपडेट करनी है पहला, और दूसरा माइनस का स्प्रेड। ये 2 के अलावा आपको कुछ नहीं करने का। अब आप सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है मैन्युअल इंटरवेंशन। हेलो, फास्ट तो नहीं है ना, चलेगा? ओके, सो मैं क्या बोला, एक्सटर्नल रेटिंग अगर A की जगह मैंने क्या लिखा, AA लिखा, AA की जगह अगर रिड्यूस हो गई माइनस, तो 1.23 पूरा सेम 4% का स्प्रेड है। सर मैं हम कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते तो वो 4% में प्ले कर सकते हैं आप। और या फिर रेटिंग में आपको क्या करना है, बोले बातें तो बता दोगे रोहित भाई, निकालना कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने का। A1 A4 जोटिंग रिपोर्ट आती है बैंक में, क्या आती है? वो BR जो बोली ना भी डिटेल वाली, उसमें एक कॉलम आता है एक्सटर्नल रेटिंग। आधे से ज्यादा अकाउंट में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ होगा, पर बाकी के अकाउंट में एप्लीकेबल लिखा हुआ होगा। एप्लीकेबल मतलब या तो कोई रेटिंग डली हुई कि BB, BBB, AA, जो कुछ भी नहीं, उन बाकी के नॉट एप्लीकेबल को हटा के बाकी सबको ले लेने का। गिनती के 20-25 अकाउंट होंगे अगर बड़ी ब्रांच नहीं हुई तो, और बड़ी ब्रांच हुई तो भी 20-25 अकाउंट ही होंगे, क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट है वो 15-20 अकाउंट होंगे। तो आपको क्या करना, उन्होंने क्या जाके गूगल में बैंकर से मांगने का ही नहीं,
और ये काम घर पे बैठ के कर लेने का। मतलब बिफोर गोइंग टू द ब्रांच, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अगर आपका बैंक एक या दो बैंक जिसकी मैं बात करता हूँ जो बैंक शेयर नहीं करता, आप यहीं बैठ के कर लीजिएगा। जस्ट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, आर्टिकल को लगा दे, नेम गूगल पे रेटिंग, नेम रेटिंग, ओपन आ जाएगा सर। रेटिंग 6 रेटिंग एजेंसी है। इट इज रूल दैट आरबीआई एवरी रेटिंग एजेंसी हैज टू अपलोड द रेटिंग ऑफ एवरी क्लाइंट ऑन द गूगल, दैट इज ओपन पोर्टल। तो आप जाके देख लोगे, वहां सिस्टम में देख लीजिए कि उसने डबल भी डाल रखी है और ऑनलाइन क्या डली हुई है। हेलो, घर बैठ के दिखा, डिफरेंस निकला, जाके पहले ही दिन बोल दो सर 1.5% 25 करोड़ का अकाउंट, साल का कितना बढ़ा देने का, अपनी तो फीस रिकवर हो गई ना। सो क्या लगता है सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल किया है, 1.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लीकेज दिया एक अकाउंट में। हेलो, कुछ नहीं है सर, 2 छोटे छोटे बड़े अकाउंट है तो 2-4 बड़े बड़े काम करो, ब्रांच मैनेजर खुश हो जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ा दिया मेरी ब्रांच का, कमिटमेंट चार्जेस। हेलो, इफ द लोन एंड एडवांसेस हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन 60%, ब्रांच बोलती है सर इतना बढ़िया कस्टमर है सर मेरा, 20% से ज्यादा तो यूटिलाइज ही नहीं करता। मैंने कहा यही काम का है मेरे। हेलो, क्यों? कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है? इफ यू आर नॉट यूटिलाइज योर फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर मोर अप टू 60% मिनिमम, देन द डिफरेंस अमाउंट फॉर लेस देन 60% देयर विल बी कमिटमेंट चार्जेस। लगा दो 2%, खूब रिकवरी करवा दोगे आप। मैंने ये भी किया। अब वो बोलता है कि सर ये पार्टी तो मानेगी नहीं, चली जाएगी। सर आपका बैंक है, आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, मैं आज लगा के देता हूँ, कल आपको जो करना है ना वो करवा के कंसेशन ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर एक्चुअली आप कुछ लोग सेंट्रल ऑडिटर से पूछ रहे थे सुबह मॉर्निंग में, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरी ओपिनियन अलग हो सकती है, वापस बोलता हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट अगेन एनीथिंग रॉन्ग, बट मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल ऑडिटर को पूछूं ही क्यों मैं। एक किसी ने रिप्लाई दिया कि सर यू आर द ऑडिटर, आप अपने ऑडिटर हो, यू हैव टू टेक योर ओन जजमेंट। बचाने आएगा सेंट्रल ऑडिटर? सो टेक योर ओन जजमेंट। देन यू wherever you are giving an MOC, you are suggesting, is what ना suggestion of MOC. Are the branch auditor suggesting any MOC? MOC का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ। तो यू आर सजेस्टिंग ए चेंज, आपको कोई पावर नहीं है चेंज करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको सजेशन देने का पावर है। तो सजेशन तो वैसे ही होते हैं, या तो एक्सेप्ट होंगे या दैट्स इट। तो क्यों टेंशन लेने का, अपने सजेशन एक्सेप्ट ही होने चाहिए। हेलो सर, मैं बहुत क्लियरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर कॉल्ड मी, सर आपकी जो एमओसी थी वो बराबर थी, ब्रांच ने सेंट्रल ऑडिटर से या ब्रांच ने एमपी करके उस अकाउंट को वापस अपग्रेड कर दिया। कब किया? बोले 24 मई को एनपीए किया क्योंकि आपने एमओसी दी और सेंट्रल ऑडिटर ने माना नहीं, और वापस 25 तारीख को इसको स्टॉक स्टेटमेंट नया लेके एनपीए कर दिया। मुझे क्या प्रॉब्लम है, वाई आर यू टेकिंग टू मी? बोले सर उसकी परिस्थिति आज की आज वो भी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो तेरे लिए खुशखबरी। हेलो, इफ देयर इज, सर आपको एक सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, इज देयर एनी अपग्रेडेशन इन द अकाउंट और डाउनग्रेडेशन इन अकाउंट, वेदर द सेम इज डन करेक्टली और नॉट? अपग्रेडेशन किया है कौन सा? जो मैंने अकाउंट एनपीए किया था उसका अपग्रेडेशन किया, वेदर द अपग्रेडेशन हैज बीन डन करेक्टली एज पर आई नॉर्म्स और नॉट? इफ द डेफिशिएंसी व्हिच वाज रिपोर्टेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर हैज बीन अपडेटेड और नॉट? नहीं है तो फिर क्या है, वापस एनपीए कर दो। मैंने कहा बस एक ही सजेशन है, अगर करने जा रहा है ना तो डेट ऑफ एनपीए वही रखना जो मैंने दी थी। तो मैंने तो 25% का प्रोविजन बनाया होगा, तेरे को पूरा 100% या 40% का बनवाना पड़ेगा। बस एक ही ध्यान रखना, क्योंकि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, बैंकर हमको, अगर हम अगेंस्ट जाएंगे ना तो हमको फंसाने का 100 तरीके निकालेगा। सो मार्क माई वर्ड, इफ यू आर गिविंग एन एमओसी एंड फाइटिंग विद द बैंकर ना, टेक ऑल द डॉक्यूमेंट फॉर यू। एक दिन ज्यादा लगे ना, गिराज जी ने बोला था सुबह, सुन रहा था मैं, एमओसी जब दिए तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा चाहिए, यस, और जब फ्रॉड डिक्लेयर किया तो और ज्यादा चाहिएगा। हेलो, अगर आपने एफएमआर दिया, और दिया मतलब देना पड़ेगा, इफ देयर इज एन फ्रॉड विच हैज बीन find it out by you during the audit procedure. If it is more than 1 crore rupees, directly reporting to Reserve Bank of India has to be done. If it is less than 1 crore, audit committee of board ACB को देना पड़ेगा। पर सर कोशिश करना सस्पेक्टेड फ्रॉड में डाल देना, सजेशन है, वापस बोल रहा हूं। There is a clear cut good word in the LFAR, that is suspected fraud.
और उसका डेफिनेशन इतना बड़ा है कि कोई भी अकाउंट को मैं फ्रॉड में डाल दूंगा। क्या? उसमें एक वर्ड है, रॉन्ग सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट। हेलो, सब है मेरे साथ? रॉन्ग सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट इज ऑल्सो फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड। इट्स कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल, जाके सर एक बार जरूर पढ़ लेना मेरी बात। There are 45 list of early warning signal which has to be read by you at least once before going for advanced verification. वो 45 चीजें ऐसी है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम किस किस, व्यू पॉइंट चेंज कर देगा सर आपका। हाउ टू वेरीफाई द एडवांस, ठीक है ना? सो आपको रॉन्ग सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, अब बोलते हैं कि सर 31 मार्च का, एक्चुअली आई वाज टेकिंग वन ऑफ द सेशन डे बिफोर यस्टरडे in CIRC online. So one member from Ghaziabad has called me and said that sir आपने बात तो बोली थी कि स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च एंड बैलेंस शीट को एक बार कंपेयर जरूर कर लेना, पर वो तो कभी नहीं मिलती और 25 तारीख का CA सर्टिफाइड स्टॉक स्टेटमेंट लगता है। मैंने कहा सर पहले तो रोकूंगा कि गलती से CA सर्टिफाइड स्टॉक स्टेटमेंट मत दे देना कभी। इफ एनी ऑफ योर क्लाइंट, हम भी देने पड़ते हैं ना, पर वी कांट गिव एन CA सर्टिफाइड स्टॉक स्टेटमेंट, करेक्ट? हम क्या दे सकते हैं? बुक डेट स्टेटमेंट, और वो भी क्या करने का, एटलीस्ट वेरीफाई करिए। सर आजकल है ना सूरत में तो अलग ही पंगा चल रहा है। इफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ सूरत फ्रॉम हियर ओनली, तो पता चलेगा उनको, CA सर्टिफिकेट अगर किसी ने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट दे दिया ना, तो खुद एक एसोसिएशन है हमारे वहां पे, वो खुद कंप्लेंट कर देता है CA की। सर अच्छा है, पहले 15 दिन तकलीफ हुई, 10 लोगों की कंप्लेंट होगी ना, पहले उन्होंने डायरेक्टली कंप्लेंट करना शुरू नहीं कर दिया, पहले वो सबको बता दिया, फिर बोला कि गाइडलाइंस, आप 5 लोगों की वजह से 55 लोग, 90 लोग जो सही काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। सो बोला सर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इट गिव शुड बी इन फॉर्म ऑफ गाइडेंस नोट। भाई कुछ भी मत दीजिए, DIC मांग रहा है या फिर सब्सिडी के लिए कुछ चाहिए, आप जो वो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। सर्टिफिकेट है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग टू अस। सो अपन बात क्या कर रहे थे, मैं भूल गया। स्टॉक स्टेटमेंट सर्टिफाइड नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला कि सर स्टॉक स्टेटमेंट सर्टिफाइड करना है। मैंने कहा सर नहीं कर सकते। पहली बात, मान लीजिए कर दिया तो बोले सर 25 तारीख का करके देते हैं। हेलो सर, CA सर्टिफाइड 25 तारीख का किया, क्योंकि बैंकर ने भी बोला था हर बार तकलीफ उनको भी फेस होती है, तो 25th ऑफ मार्च इन कंपैरिजन विद 31st ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा सर एक रीजनेबल गैप तो चलेगा, पर आप ये बोलो 25 तारीख को है ना 10 करोड़ का स्टॉक था और अचानक 31 तारीख को 2 करोड़ का रह गया, डेटर्स भी बहुत चेंज हो गए, क्रेडिटर्स भी बहुत चेंज हो गए। मैं बोला आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, it should be reasonably accepted, and if you want me to accept it, kindly provide the data for 5 days. हेलो, मेरे हिसाब से तो अकाउंट खराब है, क्योंकि इट इज प्लान्ड, कुछ नहीं है, 31 का ही था डेटा वो, पर वो 25 डेट डाल के CA ने भी दिया होगा, क्योंकि हमको भी तो बचना है अगर पार्टी मांग रही है तो। सर 5 दिन में ह्यूज वेरिफिकेशन तो नहीं आ सकता, डिफरेंसेस तो नहीं आ सकता ना। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज डिफरेंसेस, मेरा एक थॉट पर, क्यों मैं इस पे फोकस कर रहा हूं सर, यहाँ एक पॉइंट है LFR में, is there any differences in the stock statement submitted for March or balance sheet? If yes, what is your view on that? हाँ, मैं क्या कमेंट करूंगा, मेरा 5 अकाउंट देखूंगा तभी तो कमेंट कर पाऊंगा। so, मैं क्या बोला हूं सर, बिफोर राइटिंग एनीथिंग इन द LFR, think twice. You have sufficient document and you have covered that point in sample. मेरा इतना सा सबमिशन है सर, हमको सैंपल लेने हैं और जो हम देख रहे हैं अकाउंट, उनमें तो कम से कम चेक कर लेंगे, अलग से मत उठाइए, पर एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं उसको चेक कर लीजिए। टैक्स ऑडिट मेजोरिटी ऑफ बैंक में नहीं रहा, गोशन जलानी, अब उसको एक प्रॉब्लम है, गोशन जलानी का मैं बोल दिया, मैंने भी कर दिया ना, अब इसका सॉल्यूशन मैंने तो निकाल दिया सर, क्या आई एम टेकिंग ए प्रिंट आउट। गोशन जलानी में प्रॉब्लम ये है कि इट इज सिस्टम जनरेटेड, आता कुछ नहीं है, पे चेंज कुछ कर नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन क्या है, प्रिंट आउट निकालो, जो आपको लिखना है पीछे लिखिए। सर इट इज मोस्ट, मुझे लगता है ये मेरी ना मोरल ड्यूटी बन जाती है, गोशन जलानी को अच्छा लिखना। हम में से 15, 20, 50 चार्टर्ड अकाउंट लिखने लग गए ना, तो ब्रांचों की जो हालत है सुधर जाएगी। हेलो, क्यों पढ़ा है गोशन जलानी, किसी ने याद है? कोई बात सर, कोई बात नहीं, सभी अपन ही है, मैं बोल देता हूँ, इतने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन है, वेदर मे आई हेल्प यू काउंटर इज अवेलेबल। सर मेरी ब्रांच में जहाँ कॉन्करेंट करते हैं ना, मेरे स्टाफ इतने परेशान हो जाते हैं,
बोलते सर वाउचर भरवाने आ रहे लोग हमसे। बोला कोई बात नहीं रे, भर दिया करो यार। सर हाँ सर, मतलब कोई अनपढ़ है, बुजुर्ग है, दे आर अनअवेयर टू डू दैट यार। मतलब नेशनल प्राइवेट बैंकर उनको वैसे ही नहीं काटते, नेशनलाइज बैंक में हालत ख़राब हो रखी है। सर आदमी क्या करे, काम तो करना पड़ेगा ना सर। ये आप मोदी जी ने सबको जन धन खोल दिया, सब खोल दिया, सब बैंकिंग में करने का, 1500 रुपये पेंशन का भी उसी में आ रहा है। मैं बोला भर दिया करो जब तक तुम्हारे से पॉसिबल है तब तक। बट सर ये सजेशन अगर 50 लोगों का जाएगा ना, इम्प्रूवमेंट आएगा। सब काउंटर है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जगह नहीं है, एसी चल नहीं रही है, फर्नीचर की हालतें ख़राब है। मेरी एक ब्रांच कॉन्करेंट थी, उसमें महीने के 200 सेविंग अकाउंट खुलते थे, डिपॉजिट ब्रांच थी। सो केवाईसी चेक करते करते हालत ख़राब। सोचो 200 रोज के ब्रांच खुलते, अकाउंट खुलते होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट कितने होंगे, और कितने होंगे तो वहाँ रश कितना होगा, और रश होगा तो ब्रांच में खड़े रहना पड़ता है लोगों को, एक एक घंटे का कैश डिपॉजिट के लिए और एडवांसेस के लिए काम करना पड़ता है। फिर ब्रांच क्या बोलती है, बाहर वो बीसी है उसके पास जाओ, और बीसी वाला 15 रुपये अलग से लेता है मेरे ही पैसे निकालने के लिए। तो फिर ब्रांच में अकाउंट क्यों खोला? तो लग रहा होगा आपको थोड़ा हटके बात कर रहा हूं, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट। गोशन जलानी को पढ़िए और वहां सजेशन लिखिए कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो गए, कौन लिखेगा? सर वन ऑफ द नेशनलाइज बैंक हैज टेकन एन जजमेंट इन द लास्ट ईयर, एसीबी, उनकी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ने एक डिसीजन लिया, मुझे अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कितनी ब्रांचेस आपके जो बैंक कर रहे हो उसमें से कितने % नंबर ऑफ ब्रांचेस की ऑडिट होती है? हाँ बहुत ज़्यादा बोल दिया सर। सर एक एग्जांपल, हाँ ठीक है 10-15% से ज़्यादा नहीं है। 10,000 9,000 ब्रांचेस है तो 1500 1800 1900 मैक्सिमम 2,000 ब्रांचेस की ऑडिट होने वाली है। बाकी का 7,000 का क्या वहाँ गलतियाँ नहीं हो रही होगी? बोलते हैं ना स्कोप ऑफ द ऑडिटर इज गोइंग टू रिड्यूस डे बाई डे, मैं तो बोलता हूँ और बढ़ेगा। ऑडिट कौन सी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है, कॉन्करेंट बढ़ेगी कि स्टैट्यूटरी बढ़ेगी वो अलग बात है, पर स्कोप विल बी गोइंग टू बी, ये 2-5 फ्रॉड और आने चाहिए मैं तो बोलता हूँ। मैं क्या बोला सर, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट थॉट प्रोसेस आएगा, 2-4 ज्यादा आएगा तो सबको पता चलेगा। व्हेन द रिकमेंडेशन इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट दैट द ऑडिट शुड कंटिन्यू ना, मैं तो बोलता हूँ नेशनलाइज में तो कंटिन्यू होनी चाहिए, प्राइवेट को भी लेके आना चाहिए। हेलो करेक्ट ना? सो द थिंग इज सर, हम हमारा काम अगर अच्छे से करेंगे ना तो सब अच्छा होगा, स्कोप भी बढ़ेगा। तो एसीबी ने क्या जजमेंट लिया कि ऑल्दो इट इज डिसीजन ऑफ द बैंक to decide number of branches, but now they have taken decision that every branch of our bank will be under audit once in a 5 year. हेलो, गांव में 15 करोड़ की ब्रांच होगी तो भी उसकी ऑडिट होगी। सोचना एसीबी में चेयरमैन कौन होता है पता है ना आपको? हेलो, एसीबी का चेयरमैन हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो उन्होंने व्यू पॉइंट रखा एसीबी में कि अगर सर ना तो इंटरनल ऑडिट कर पा रहे हैं, ना उस ब्रांच में एग्रीकल्चर है, एडवांसेस नहीं हो चेक करें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ब्रांच मैनेजर है वो तो सब चलते ही रहेगा। या मैं सेंट्रल ऑफिस लेवल पे बैठ के उस छोटी सी ब्रांच के रीजनल जोन के नीचे रीजन के नीचे ब्रांच, तो सब कुछ जोन के नीचे वो ब्रांच मैनेजर करते रहेंगे जो करना होगा। सो इफ समथिंग विल बी हैपनिंग इन द ब्रांच विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इट। और कहाँ प्रॉब्लम होती है, अगर कैमरा नहीं लगा है तभी चोरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर अगर कैमरा लगा होगा तो 70% चांसेस है कि कोई ना कोई देख रहा होगा, भले कोई नहीं देख रहा हो। करेक्ट? सो अच्छा डिसीजन लगा इसलिए मैंने आपको जस्ट बता दिया। सो काइंडली रीड घोष एंड जलानी कमेटी, गिव इन राइटिंग, पीछे पीछे लिख दीजिए वहां पे। और क्या करिए, सेंट्रल ऑडिटर का मेल आईडी आ गया होगा, आपको ऑडिट रिपोर्ट में चेंज नहीं करने दे रहे हैं, एक रिपोर्ट प्रिंट करिए लगा दीजिए, काइंडली आई वॉज नॉट एबल टू चेंज दर इन द रिपोर्ट सिस्टम बिकॉज इज सिस्टम जनरेटेड ऑल्दो वी हैव साइंड ऑन द रिपोर्ट टू कंप्लाइड विद द सिस्टम, क्योंकि वहां नहीं करोगे तो ब्रांच क्लोज नहीं होगी। सो हमने ये तो कर दिया, पर ये लो, ये हमारी ऑडिट, काइंडली ट्रीट इट ओवर दैट। अभी कौन बोला था कि सर एमओसी रिवर्सल करते हैं क्या? सर मैं 2 बातें बोलता हूं, वैसे तो सेंट्रल ऑडिटर एमओसी रिवर्सल करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक वो सर एमओसी रिवर्सल क्या होता है? ड्रॉप करना, देयर इज नो वर्ड लाइक ड्रॉप। हेलो, सब है ना पीछे? ड्रॉप का कोई सिस्टम नहीं है सर, इट इज एन रिवर्सल ऑफ एमओसी। मतलब आपकी एमओसी रिवर्स करने के लिए मुझे एक एमओसी और देनी पड़ेगी। क्यों? Because you have classified one account as some from standard to substandard. Now I have to convert from substandard to, तो मैं पागल हूँ क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे माथे पे ले रहा हूँ। सर मैं भी आप ही के जैसा ऑडिटर हूँ, सो आई एम डूइंग कंसोलिडेशन। तो मैं क्यों लूँगा?
इसलिए ले पाता हूँ सर, मैंने आई हैव रीड मोर देन 4000 LFAR, मैंने शायद पढ़ लिए होंगे। और शायद हम लोग पहले क्या करते, फर्स्ट ईयर वॉज ऑडिट, इन दैट केस आई वॉज रीडिंग आफ्टर कंप्लाइलेशन ऑफ ऑडिट में 15, हमारी डेट शायद लगभग 15 मई रहती है, बिकॉज इट इज लिस्टेड कंपनी, 15 मई तक साइन करके देना पड़ेगा। सो मैं ये सोचता हूँ 30 मई तक, 30 अप्रैल तक हम लोग बैलेंस शीट साइन कर देते थे, तो उसके पहले LFAR नहीं कर पढ़ते थे। तो एक बार हमको फील हुआ कि LFAR में हमारे प्रोफेशनल कलीग्स ने ऐसा कुछ भी लिख लिया जिसमें MOC जानी चाहिए थी, ऑल्दो ही वॉज ग्रॉसली नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट। जैसे सुबह बोला ना अदर स्पीकर्स ने, 6 महीने से स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, फिर भी अकाउंट रेगुलर आपके हिसाब से, और आपने अच्छे से लिख दिया द स्टॉक स्टेटमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय द पारिदी फॉर मोर देन 6 मंथ। गलत है सर। हेलो, 6 महीने तक नहीं आया तो 180 दिन हो गया, 90 + 90 द अकाउंट इज ओवर ड्यू, देन वाई यू आर नॉट क्लासिफाइड एज एन NPA? बिकॉज ऑफ ब्रांच सजेशन। सर उनको बोलिए सर मदद उतनी ही कर पाऊंगा जितने से मेरी गर्दन और पैर दोनों बचेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी शुड बी गुड विद द ब्रांच मैनेजर एज वेल, बट तब तक जब तक कि मेरा गला सेफ रहे। सो अगर ये तो ऑडिटर ग्रोसली नेग्लिजेंट का नहीं, मैं ये बोलता हूँ सर किसी दिन ICI की सन की, और ऐसे केसेस में जहाँ ब्रांच सेंट्रल ऑडिटर ने, बिकॉज बहुत ईजी है, कितनी सेंट्रल ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिटर की, जिन ब्रांच की ऑडिट है उसमें MOC दे दी, या तो ICI या बैंक खुद रिपोर्ट कर देगा। क्या रिपोर्ट करेगा? हेलो, क्या रिपोर्ट करेगा? हाँ सर, मेरे को पता है कि 1500 ब्रांचेस की ऑडिट हुई है। चलो सेंट्रल ऑडिटर ने, आपने जब तक दी तब तक ठीक है, सेंट्रल ऑडिट ने कौन सी MOC इन 1500 ब्रांचेस के लिए दी? चलो ये 40 MOC दी, क्यों दी? बोले ऑडिटर ने LFAR में, मेरे को सपने आ रहे हैं वहाँ पे बैठ के कि आपकी ब्रांच में क्या हुआ। नहीं, मैंने आपका LFAR पढ़ा, आई गॉट टू नो अबाउट समथिंग, आई चेक द सिस्टम, मेरे पास पेपर नहीं है, पर मुझे पेपर से सिस्टम से देखने से पता चला कि ये अकाउंट NPA होना चाहिए था, तो मैंने वहाँ बैठ के किया। ये काम हम पहली बार जब पढ़ रहे थे LFAR ना, तब हमने गलती कर दी कि 30 अप्रैल के बाद LFAR, बिकॉज कंसोलिडेशन ऑफ LFAR इज डेटेड ऑन 30 जून। मेरे पास LFAR सबमिट करने का टाइम 30 जून का है RBI को देने के लिए। सो हम क्या करते थे, बाद में पढ़ते थे, फिर नहीं पढ़ते, अब पहले ही पढ़ लेते। देयर आर सम, क्योंकि हमको फील होता है सर यार इसने भी किसी रीजन से नहीं दिया और मैंने भी रह दिया, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। सो कम से कम हम पहला उतना पढ़ लेते हैं जितने पॉइंट से कि MOC आ रही होती है। हेलो, सो हमको ये करना है कि सर जिस पार्ट पे बनता है वहाँ देना है, नहीं देना तो या तो आप कहीं मत लिखिए। अगर आपके पास इतना ही प्रेशर है, छोड़ सकने की हिम्मत है, तो पूरा ही छोड़ दीजिए, और या फिर मत छोड़िए, बोल दीजिए कि सेंट्रल ऑडिटर को बोल दिए रिवर्स कर दीजिए। और आपको लगता है सेंट्रल ऑडिटर रिवर्स करता है, नहीं करता है, वेरी लेस चांसेस। क्यों कर देता है? वहाँ एक प्रॉब्लम आपकी है, आपकी मतलब वी इन ब्रांच ऑडिटर। हम क्या करते हैं ना, लिखते नहीं कि प्रॉब्लम क्या थी, ये कह के कि स्पेस नहीं है। हेलो, किसी ने प्रॉब्लम फेस की होगी? वो MOC जब बनती है ना, तो उसके नीचे स्पेस लिखने के लिए बहुत कम होता है। आप ये लिखते हैं कि इंटरेस्ट नॉट सर्व ड्यूरिंग लास्ट 90 डेज, किस दिन क्या कहानी नहीं। मैं बोलता हूँ सर अगर मेरी MOC कोई रिवर्स कर देना तो मेरे लिए क्या है, मतलब मैंने काम ही नहीं किया क्या? अच्छा, इट इज चैलेंज ऑन माई प्रोफेशनलिज्म ना। बोल दो वो कर सकता है, दोनों बातें कर रहा हूँ। आप बोलोगे यार पहले बोलते हो कि कर दिया तो करने दो, नहीं, मैं बोलता हूँ सर आपने एक अच्छा जजमेंट लिया, आपका इंस्टीट्यूट से वो भी पढ़े मैं भी पढ़ाऊँ ना, तो इतना अच्छा लिख के दीजिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लिखना है ना तो मैं अनेक्स रिमार्क में क्या लिखता हूँ पता है सर? अनेक्सर अटैच्ड। हेलो, तो अनेक्सर अटैच्ड लिख दो, सब कुछ काम हो जाएगा आपका। सो माई ओनली डिस्कशन ऑफ दिस, LFAR शुड बी डिटेल। अगर आपको पास स्पेस कम लग रहा है, अलग से नोट बनाइए, ब्रांच को, जोन को, सेंट्रल को और सेंट्रल ऑडिटर को सबको मेल कर दीजिए। ओके? हाँ, इस वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? बिफोर मूविंग फर्दर जस्ट लेट मी ओपन एन LFAR वंस। एक बार शक्ल देख लेते, शायद 1 साल पहले देखी होगी। सर LFAR ऐसा होता है, क्या है? असेट, 4 पैरा है। मैं LFAR को ये समझता हूँ, असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल। असेट में 6 अलग पॉइंट है, P&L में। असेट लायबिलिटी में 3 पॉइंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 है, जनरल में 3-4 पॉइंट है। और बाकी का कुछ LFAR जो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए चलता है, जैसे मैं अगर NPA ब्रांच हूँ तो उसके लिए अलग है,
मैं अगर नेस्ट्रो बैंक यानी एनआरआई ब्रांच उसके लिए अलग है, या फिर और कौन सी इन्वेस्टमेंट ब्रांचेस जो अपने पास है नहीं जनरली, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस का पार्ट है। सो ये एलएफएआर है सर। आपको लग रहा होगा सर, शायद आपने पता भी है, क्योंकि हमारे लिए क्या है सर, नो और नॉट एप्लीकेबल लिखना बहुत ज़्यादा ईजी है इस फॉर्मेट में। ये दिख रहा है ऐसा है कि खाली बक्से पड़े हुए हैं, पर ये जितना भी है ना, अगर आप यहाँ यस करने जाओगे ना सर, आपको इतनी सारी कहानी देनी पड़ेगी ना, बोले क्या मगजमारी, छोड़ो ना, नो करके निकलो। हेलो, शायद फेस किया होगा आप लोगों में सर, इतनी डिटेल चाहिए, वी आर ऑन द लास्ट डे और 5th डे, 5वें दिन बैठ के हम एलएफआर भरने बैठ रहे हैं, और तब तक क्या होता है, दूसरी ब्रांच का प्रेशर, और मैनेजर सर आज तो क्लोज कर दो सर, परेशान हो गया, पिछले बार ऑडिटर बहुत अच्छा था, 3 दिन में खत्म करके चले गया, आप 5 दिन से मेरा जीव खा रहे हो। सो ये सब लास्ट दिन करने पड़ेंगे सर। मेरा ओनली हम्बल मेरा रिक्वेस्ट है सर, एलएफआर के लिए रूल है, पहले दिन से एलएफआर भरना शुरू कर दीजिए। एक ही तरीका है अच्छा एलएफआर भरने का। सब बोलते हैं ना सेंट्रल ऑडिटर एलएफआर अच्छा नहीं आता, सब ने मेहनत की है सर। Every auditor has done the greatest job in the branch audit, but as the problem my principal said me when I was article ना, that you are good at work पर bad at reporting, मेरे लिए ही बोलते थे। So अच्छा है कि मेरे प्रिंसिपल ने उसी टाइम पे डांटा, बहुत डांटा, that I am good at work but bad at reporting, क्योंकि हम प्लान करते हैं बाद में, तब तक आधी चीजें तो याद नहीं रहती है, और आधी चीजें हम छोड़ चुके होते हैं, और बाकी की चीजों में बैंक मैनेजर जितनी याद रहती है उसमें बैंक मैनेजर लाके दे, सर ये तो फाइल में पड़ा था। हेलो, सो उसके बाद क्या होता है कि हमारी तो इतनी मेहनत करने के बाद ये लगा कि जो 100 में से 15 अकाउंट देखे, 10 अकाउंट देखे, 10 में से 5 में गलतियां मिली, और 5 में जो गलतियां मिली वो भी मैनेजर ने ठीक कर दिया, मतलब इसका मतलब तो पूरी ब्रांच अच्छी है। सो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा काम दिखता नहीं है। सो वॉट एवर यू आर फाइंडिंग, मेरा तरीका एलएफआर बनने का मैं बता देता हूँ। आई स्टार्ट ऑन डे 1, पहले दिन से चालू करूंगा। सैम्पलिंग जो सेलेक्ट करनी है उसकी लिस्ट मैंने पहले बना ली। कैसे बनाई, टर्नओवर रिपोर्ट ले लीजिए, मेरा 2-3 चीजें ले लूँ, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए लास्ट में मैंने पीपीटी पूरी नहीं चलाई, मैं कवर कर लूंगा वो पर ये क्या यही काम के सर, सैम्पलिंग कैसे करनी है सर, आपको 500 अकाउंट है, उसमें से 15 अकाउंट, 20 अकाउंट, 50 अकाउंट देखने कैसे अदर देन 10% के। सर एक टर्नओवर रिपोर्ट ले लीजिए सीसी के लिए, सैम्पलिंग 2 मिनट में निकल जाएगी। ऐसे अकाउंट जिसमें टर्नओवर रिपोर्ट क्या होती है, ATOR फिनेकल में, और बाकी बैंक्स 24 में टर्नओवर रिपोर्ट, बैंकर को बोलो जितने अकाउंट है आपके उन सब की टर्नओवर रिपोर्ट दे दीजिए। वहाँ क्या देखना है, 2 ही चीज़ें देखनी है, या तो सीसी से 4 गुना का टर्नओवर नहीं है, और या कम है या ज़्यादा है, दोनों अकाउंट आपके सैम्पलिंग का पार्ट हो गया। हेलो, if an account has been sanctioned of 10 crore rupees, there should be at least 4 times turnover, that is 40 crore rupees, or the turnover should be equal to the turnover in the books of accounts। मतलब हो सकता है सीजनल बिजनेस है तो 2 गुना ही किया हो उसने, करेक्ट। सो 2 गुना किया है तो आपको टर्नओवर रिपोर्ट में वो एक्सेप्शनल निकल जाएगा, 15 में से 5 अकाउंट हो सकते हैं, पर आपके लिए वो अकाउंट आ गया कि द पार्टी इज ओनली सर्विंग इंटरेस्ट इन दिस अकाउंट, जहां मिलेगा। तो ATOR लो, जितनी लिमिट है, ATOR में लिमिट दिखती है ऊपर ही ऊपर, तो जितनी लिमिट है उसका टोटल आता है नीचे, उससे 4 गुना का हो गया नई सैंपल में लेने का। जिनमें ज्यादा आया कम आया दोनों को लेने का, ज्यादा आया मतलब बहुत घुमाया, कम आया मतलब देयर इज एन सर्विंग ऑफ इंटरेस्ट ओनली। हो सकता है सब कुछ अच्छा मिले, पर ये आपके लिए सैंपलिंग का काम कर देगा। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जब अलॉटमेंट आ जाए तभी लेटर लिखे ब्रांच को बोल दो शेयर मी कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट 3 मंथ एज वेल एज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। सर 6 महीने पहले हुई, कोई बात नहीं, आपने 6 महीने में क्या किया वो पता चल जाएगा मेरे को। रेवेन्यू लीकेज ले लीजिए, और रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट जब भी हुई वो ले लीजिए, उससे ब्रांच की प्रैक्टिस पता चल जाएगी किस एरिया में रेवेन्यू लीकेज आई थी। वो भी आपका काम, क्योंकि आपको रेवेन्यू निकालने का काम है आपका। हेलो, है KYC देखनी है, यस क्यों सर, ऑल्दो यू आर रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, दैट इज आपने बोला कॉन्करेंट ऑडिटर मेरी ब्रांच में है इसलिए KYC नहीं देखूंगा, नो। क्यों, उसका स्कोप है पूरा, आपका भी पूरा है। ऑल्दो यू कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, बट आपको रिलायंस तब होना चाहिए जब कुछ सैंपल लेके देखा कि इसने काम बराबर किया है। अदरवाइज स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 610-20 क्या बोलेगा, बोलेगा सर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना था। तो सेविंग अकाउंट के भी 2-4 अकाउंट ले लीजिए, सैंपलिंग का पार्ट बनाने की बात कर रहा हूं सर। मैं क्या बोल रहा हूं, रिस्क कम कैसे करनी है, करेक्ट। मैंने इसका पर्पस क्या है, पहले दिन से LFAR भरना शुरू करिए। जाने से पहले ये LFAR आपके हर स्टाफ को एक बार पढ़ के बताने का, 1 घंटे की क्लास ले लीजिए ऑफिस में,
कि भाई लास्ट ईयर का या तो अगर ऑडिट है तो सेम बैंक है, LFR वापस पढ़ लेते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किन किन जगह पे मेरे को अकाउंट डिटेल डालनी है। हेलो, यस, किन किन में डिटेल डालनी है और क्या क्या डिटेल डालनी है, चेकलिस्ट बना लीजिए। तो प्लान LFR ऑन डेली बेसिस, डेप्यूट ओनली सिंगल पर्सन टू डू डेटा एंट्री इनटू LFR। आज मैं कर रहा हूं, कल कोई दूसरा, कल कोई तीसरा, नहीं, एक आदमी को दो और उसी आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अगले ब्रांच का ऑडिट करने के लिए, LFR वही भरेगा। बाकी की टीम साइमल्टेनियसली चलती रहे, पर सेकंड ब्रांच के लिए वही आदमी को दो, क्योंकि पहले में थोड़ा बहुत सीखा होगा, दूसरे में मास्टर हो जाएगा। हेलो, सो डेली बेसिस पे एंट्री करनी है। अगर ब्रांच से डिस्कशन करना है, आधा घंटा काम कम करना, मेरी बात मानना सर, पर रोज ब्रांच से डिस्कस कर लेना। इट वॉज माई फर्स्ट ब्रांच व्हेन आई साइंड इन 2017। आई फेस द डिफिकल्टी, आई वॉज इन आंध्रा। ब्रांच मैनेजर ने 5 दिन काम करने के बाद ये समझ में आया, सर ये भी है, 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 सब कुछ लाके दीजिए, मैं ऑडिट साइन करूँ कि क्या करूँ? मैं वापस रिवीजन करने, आई एम नॉट देयर टू इंटरनल ऑडिट कि आप मैंने जो देखा उसको वापस वेरीफाई करूँ, चेक करूँ, ड्रॉप करूँ, नहीं। सो जो तेरे पास है वो आज बता देना, कल नहीं देखूंगा। हेलो सर, आई एम गिविंग अ डिटेल, मैं उसको फ्लैश रिपोर्ट बोलता हूं मेरी। इफ आई एम फाइंडिंग एनी डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम इन द अकाउंट्स, आई इशूड दैट फ्लैश रिपोर्ट। मेल पे मत डालना, व्हाट्सएप दे देना, जैसे भी देना है, प्रिंट आउट निकाल के दे दो कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरी ओपिनियन है, गलती हो सकती है मेरे से, इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज गेट इट बिग टू मी बाय टुमारो। कल नहीं तो मेरे LFR में अपडेट हो जाएगा, उसके बाद नहीं मानूंगा। 5 दिन बाद अरेंजमेंट करके लाओगे, नहीं मानूंगा। फिर अगर वो बोले कि है, बोले है तो रेक्टिफिकेशन करते रहना बाद में, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट हियर फॉर 10 days 15 days। हेलो सर, पहले दूसरे दिन चालू करिए, डेटा एंट्री करिए, डेली डिस्कशन करना है ब्रांच मैनेजर के साथ में आधे घंटा, सो दैट योर ब्रांच विल बी कंपाइल इन अ टाइम। और लास्ट दिन में कोई डिस्कशन नहीं करने का, ब्रांच मैनेजर को पहले बोल देने का, सर एक दिन पहले तक डिस्कशन करूँ, लास्ट दिन केवल साइनिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसी साइनिंग करवाने लाओगे जिसमें मेरे पास डेटा भी नहीं होगा। सो उस दिन अगर साइनिंग करोगे ढंग से तो पता रहेगा कि क्या क्या छूट गया है। करेक्ट, डन। तो मेरा दिखाने का पर्पस ये है कि कुछ आंसर और क्वेश्चन बना के रखिए। WIRC, मुझे पता है केतन भाई ने एक बहुत अच्छा LFR का, बिकॉज आई हैव शेयर्ड विद मल्टीपल पीपल दैट ही हैज गिवन एन सजेशन कि हाउ द LFR शुड बी फीडेड, वो भरना कैसे चाहिए क्या। तो वो आप एक एक्सेल अगर WIRC अरेंज कर देगी तो बढ़िया है आपके पास से। आइदर आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग टू यू, यू कैन डू द मेलिंग टू मी। सो वो उससे फ़ायदा क्या है ना सर, एक आंसर लिखने का तरीका पता चल जाएगा। एक मतलब मैंने पहले सोचा था कि सर कुछ गोशन जलानी में कमेंट ऐसे आते हैं कि वेदर ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द योर ऑडिट ऑल द वेदर मे आई हेल्प यू फैसिलिटी वॉज अवेलेबल इन द ब्रांच और नॉट। आपने बोला यस। आप थे क्या 31 मार्च के पहले ब्रांच में? हेलो, नहीं ना सर। हमको एक आंसर लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिट पीरियड, मैंने जो अभी देखा है ना उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये की वाला कमेंट लिखते हैं अपन कैश डिपॉजिट में, वेदर द कैश इज बीइंग मैनेज बाय 2% और नॉट। हाँ बराबर है या नहीं है, दोनों कैसे पता? आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक तो उस ब्रांच में कभी गए नहीं थे। सो यू ड्यूरिंग योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस पीरियड, मैंने जब ऑडिट की तब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कम से कम इतना सर प्लीज। हेलो, आप लोग बहुत जने कर रहे होंगे बट हाँ सर कोई कुछ नहीं ना, सही चल रहा है सर? हल पीछे वाले हाउस द जोश सर 5 बज गए लगे, आप भी परेशान हो गए होंगे और मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है क्या कर रहा है, जाने देना भाई। जोक से सपाट, बस ऐसे ही डिस्कशन करते रहे तो माहौल थोड़ा ठंडा रहता है। बैंकिंग वैसे ही टेंशन वाला काम है। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट ये आपको भरनी है सर, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैलेंस एट द ईयर एंड, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, उसका टोटलिंग बनेगा सर। ये आपको सैम्पलिंग शुड बी सफिशिएंट इनफ टू अप्रोप्रिएट कि आपका पूरा सैंपल कितना होता है। यहाँ एक हर बार मुझसे कोई न कोई बोलता है रोहित भाई इतने अकाउंट चेक किए फिर भी 10% ही टोटल आया है। हेलो, समझे मैं क्या बोला ना? यहाँ क्या परसेंटेज में क्या होता है, जितना टोटल आप लिखते हैं ना, आपकी सैम्पलिंग सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या आता है, एक परसेंटेज जनरेट होता है। उस दिन आपको लगता है मैंने इतना ही किया। मेरे को भी लगता था,
तो उसके बाद तो क्या है, आई एम गेटिंग ब्रांचेस नाउ मोर देन 1000-2000 करोड़ रुपीज, सो अभी नहीं लगता, क्योंकि 15-20 अकाउंट चेक किया, सभी वैसे 100% कवरेज आ जाता है मेरा तो। कोई 25-50 करोड़ रुपए से अकाउंट छोटा नहीं, 10 करोड़ से सब बड़े, आंख बंद करके सब लिख दो। हाँ ठीक है सर, क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ क्या है, एक प्रॉब्लम और है, जब ये फंड बेस की बात करते हैं तो अकाउंट नंबर लिखने में एक प्रॉब्लम आती है सर, नॉन फंड के बेस की भी अकाउंट नंबर लिखने पड़ेंगे। हमने फंड बेस बराबर से देखा है, अब नॉन फंड बेस का क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। कंटिंजेंट लायबिलिटी आर मोर डेंजरस देन प्रिंसिपल लायबिलिटी। मैं वो तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, आधी जने देखेंगे भी नहीं, वो ज्यादा जरूरी है सर मेरे लिए, ठीक है ना। ये केवल दिखाने के लिए था, असेट में मैं अभी डिस्कस कर लूंगा कि क्या क्या है, बट जस्ट टू शो इट, लाइक हियर इट इज असेट क्लासिफिकेशन, लास्ट एफ नंबर तक खत्म हो गया, देयर आफ्टर इट विल स्टार्ट एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉन फंड बेस के लिए अलग से क्राइटेरिया, इफ देयर एनी बीजी इन्वॉल्व एंड एलसी डिवॉल्व, एक अलग कमेंट करना है। मैं एलसी डिवॉल्व में एक ध्यान रख लेना छोटा सा, कि अगर कोई भी ब्रांच में बीजी इन्वॉक्ड हुई है या एलसी डिवॉल्व हुई है, इन दैट केस चेक वन थिंग, कि जब पेमेंट किया होगा ना सर, एलसी डिवॉल्व पता है ना, बीजी इन्वॉक हो गई है या एलसी डिवॉल्व हो गई है। बीजी इन्वॉक हो गई मतलब क्या हुआ, बैंक को पैसा देना पड़ेगा एजेंसीज को, सो बैंक के पास दे दिया, अगर पार्टी अच्छी होती तो बीजी डिवॉक होती क्या, तो आपको ये तो कंफर्म है कि सीसी पूरी यूज्ड हो रखी होगी, अब पैसा तो देना पड़ेगा, बैंक आर बाउंड टू डू दैट। तो दिया तो क्या किया मैंने, सीसी में तो डेबिट करूंगा तो ओवरड्यू हो जाएगा, और उतना पावर बैंकर के पास है नहीं। बैंक क्या करता है, एक नया अकाउंट खोल देता है। हेलो, बैंक सेपरेट अकाउंट खोलेगा, पैसा तो देना पड़ेगा ना, या तो इंटर ब्रांच में डेबिट करूं, और इंटर ब्रांच को डे एंड पे जीरो करना पड़ता है। सो बैंक क्या करेगा, उसी बोरोवर के नाम पे एक नया अकाउंट खोल देगा एज अ टर्म लोन। उस टर्म लोन में 5 करोड़ का अगर बीजी डिवॉल्ट हुआ तो 5 करोड़ उठा के पेमेंट कर देगा कहां पे, एजेंसी को। अब क्या होता है ना, ये अकाउंट एनपीए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, बीजी डिवॉल्वमेंट की वजह से एनपीए हो जाना चाहिए अकाउंट, हेलो नहीं, बीजी डिवॉल्ट होगी उसकी वजह से एनपीए क्यों हो जाएगा, हाँ आफ्टर 90 डेज क्यों हो जाएगा, वो टर्म लोन मान लो 1 साल के लिए दिया मैंने वो टर्म लोन, मैम मैं बोला मैडम कुछ पूछना चाहती है सर, तो मैं बोला पूछ लो सर। बीजी डिवॉल्व में क्या हुआ, 90 डेज में एनपीए क्यों हो जाएगा, उसका लॉजिक बराबर बोला सर ने, लॉजिक में बता देता हूं। सो बैंक शुड नॉट ओपन एन अकाउंट सेपरेटली, बैंक शुड डेबिट द सीसी और ओडी अकाउंट, नहीं क्या उस तरीका निकाला, अगर डेबिट कर दिया होता तो क्या करता, ये पार्टी 90 दिन में पैसा, तो 90 डेज तक अकाउंट, दैट्स इट। तो चेक इफ देयर विल बी एनी बीजी डिवॉल्वमेंट, बीजी इन्वॉक्ड और एलसी डिवॉल्व, चेक कर लिएगी कि पैसा जो दिया वो कहां से दिया, सेपरेट अकाउंट में से, क्या सेपरेट अकाउंट 90 डेज में से जेन्युइन सोर्सेज से पैसा आ गया क्या, ऐसा नहीं दूसरा लोन देके क्लोज कर दिया हो, हेलो, अगर वो है तो चेक कर ली, इतना सा ही काम इंपॉर्टेंट है, बीजी इन्वॉल्व। और अदर अकाउंट में सस्पेंस सन्ड्री देखना है क्या, क्या ही देखना, सब कुछ साफ साफ होता है, हेलो, सस्पेंशंस क्या देखना है सर, आप जाते हो उसके पहले सर इतने अकाउंट 6 महीने से पुराने, हमको क्या देखना होता है 6 महीने से पुरानी एंट्री कितनी और नहीं कितनी है, ऐसा लगता है आपको कि आपके यहाँ कोई ऑडिट करने आया अगर वो आपके लिए कुछ रखेगा उसमें, हेलो नहीं ना, क्या किया होगा उसने लास्ट 15 दिन में, खूब सफाई की होगी, उसने कैसे सफाई की वही चेक करना है बस। सो टेक द सन्डी सस्पेंस फॉर 15 डेज, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस ब्रांचेस के पीछे लग जाता है, क्यों लग जाता है सर पता है आपको, वाई सो इंपॉर्टेंट सन्डे सस्पेंस, आपके कहने के बाद भी पड़ा ही रहता है, कोई बात नहीं तो ज्यादा रख लेते ना, क्यों पीछे पड़े हो लास्ट में, सर एट सेंट्रल ऑफिस लेवल 100% प्रोविजन करना पड़ता है, 6 महीने से ज्यादा की पेंडिंग जितनी भी एंट्री है ना उन सबका 100% प्रोविजन करना पड़ता हुआ। इसलिए ब्रांच को क्या बोलता है, तेरी परफॉर्मेंस तब बढ़ेगी जब ये सन्डी क्लियर होगा, तो 15 दिन तक सब धंधे पूरे साल में जितना नहीं किया होगा ना वो सब यहाँ कर दिया होगा, हेलो। सो 15 दिन का चेक कर लीजिए एक बार, क्या देखना है, कुछ नहीं, जो एंट्री हुई है वो कहां से हुई है, क्यों हुई है, 5 एंट्री पूछ लोगे ना तो ब्रांच मैनेजर समझ में आ जाएगा, घबराहट आ गई तो चेक करना है, ज्यादा नहीं आई तो। इन द बैंकिंग 5 days ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऑडिट ऑफ पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट। एक ऐसा आदमी ढूंढो जो उस ब्रांच में फ्रस्ट्रेटेड हो, वो आपके लिए विभीषण है।
सर बिकॉज सर मैं लाइटर इसलिए चल रहा हूँ कि हमको ऑडिट कैसे करनी है ये समझना है. सो क्या है, आप नहीं ढूंढ पाएंगे सर, बहुत सारी चीजें हैं. तो क्या है, वो आदमी आपके बहुत काम का है. सर हमको हर बार मिला है कोई न कोई ऐसा. हर आदमी के पास, मैं बताता हूँ सर, हर आदमी के पास 15-15 मिनट बैठने का और 2 दिन में अलग अलग आदमी के पास चाय पीने का. सर क्या चल रहा है सर, परेशान कोई मतलब नहीं है सर. सर मैं तो 3 साल से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगा रखा हूँ. ये बात कोई बोल देना, वो अपना आदमी है. क्यों जाना चाहता है ये ब्रांच से? बोले क्योंकि क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है, एवरीवेयर देयर इज अ टारगेट, और आप टारगेट के लिए चीफ मैनेजर स्केल 4 को फंसाते हो. एजीएम कुछ करता नहीं है. रिकमेंडेशन किससे आता है सर? आपको पता है प्रोसीजर कैसे चलती है? नीचे से रिकमेंडेशन हमेशा स्केल 3 स्केल 4 ऑफिसर का आता है. उसने रिकमेंड किया इसलिए मैंने आगे रिकमेंड किया और उसने सेंक्शन कर दिया. सो सेंक्शनिंग अथॉरिटी भी क्या बोलती है? इट इज रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिसर. सबसे पहले वही जाएगा. तो कभी कभी ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन कराना पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता. उसको लग रहा है कि इस अकाउंट में लोन देने ही नहीं वाला, फिर भी देने पड़ रहे हैं. वही काम का आदमी. सर बहुत कम समय मिलेगा सर. सैम्पलिंग में बोलता हूँ या तो ब्रांच ऑफिस में बैठ के हो जानी चाहिए थी, और या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल. ये देखिए सर कितने लोग आते हैं. कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या जिसके बहुत सारे फाइनेंस हो रहे हैं उस ब्रांच में एक साल में? पता चल जाएगा आपको सर. एक ही आदमी के सर्टिफिकेट आ रहे होंगे. तो ये बोल दीजिए किसी ऑफिसर को, अगर वो डिवीजन मिल गया ना तो इतने कितने अकाउंट सेंक्शन करवाए हैं सर? इस सीए के कितने सेंक्शन है सर? यहाँ अकाउंट कैसे आते हैं? सीए से आते हैं कि डायरेक्टली लाते हो? बोले नहीं नहीं सर, जैसे मैं सूरत की बात कर रहा हूँ एवरीवेयर, ऐसा नहीं बोला हूँ सर, हम गलत देंगे. देर आर अदर फाइनेंशियल प्रोवाइडर जो सीए ना होकर दूसरे होंगे, उनके अकाउंट्स की क्वालिटी हमको पता है कि कैसे आती है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन के आती है सर, वहाँ प्रॉब्लम है. लाइबिलिटी में डिपॉजिट एरिया सैंपल सेलेक्ट करना है. लार्ज डिपॉजिट, मूवमेंट ऑफ डिपॉजिट हैज टू बी चेक्ड वेरी वेल, क्योंकि ये कमेंट है यहाँ पे. मूवमेंट ऑफ डिपॉजिट मतलब समझ गए सर? हाँ, थोड़ा बहुत क्वार्टर के पहले और क्वार्टर के बाद में. सर अगर ये विंडो ड्रेसिंग अगर आपको मिल गई ना, हर आदमी हाथ जोड़ने आएगा आपके पास. एमओसी में तकलीफ नहीं पड़ी, वो बोलेगा सर विंडो ड्रेसिंग की एमओसी मत दीजिए सर. हेलो, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? इंक्रीजिंग द एसेट एंड बस. सर मेरे केस में लास्ट टू लास्ट ईयर आपको विंडो ड्रेसिंग सबसे ज्यादा कहां मिलेगी पता है आपको? एनी अकाउंट विच हैज बीन सैंक्शन इन द लास्ट मंथ इटसेल्फ. मार्च में जो अकाउंट सैंक्शन हुआ ना, उसका डिसबर्समेंट, इट इज योर ड्यूटी टू चेक इट. पैसा कहां का गया? 26 तारीख को सैंक्शन होके आया और 30 तारीख से 25 करोड़ रुपए डिसबर्स कर दिया आपने. बोले कहां क्या ला देना मेरे को, किस बेसिस पे किया? बिना किसी इनवॉइस के टर्म लोन डिसबर्स हो गया. कहां गया? डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में. मतलब सर ये क्यों किया? सर 2 दिन क्या है ना, वो हमारे इनवॉइस नहीं आए थे ना, तो इसलिए उस अकाउंट में कर दिया. मैं कहा क्यों कर दिया? इज इट ओके? क्या प्रॉब्लम है? एंड यूज तो प्रॉब्लम ही है. डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया ना प्रमोटर के खाते में. भले अब 4 तारीख को वापस आ गया. मैं बोला मैं दिखता ही नहीं हूं 4 तारीख के बाद का, मुझे 31 के बाद का कुछ नहीं दिखता. यू हैव इंक्रीज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना. आपकी हाउ वी कैन से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. पिछले साल का 300 करोड़ रुपए, इस साल 550 करोड़ रुपए, और 3 दिन के बाद चमत्कारिक रूप से 100 करोड़ रुपए कम हो गया. हेलो, in that case there is a movement of account. If because accounting standard 4 event occur after the balance sheet date are more important and should be incorporated in the financial statement or audit of that period as well. So deposit में आपको वेरिएशन अगर मिलता है तो देख लीजिए. अदर बिल्स पेबल, दिस इज द वन एरिया जहां लॉन्ग बिल आउटस्टैंडिंग पड़े रहते हैं. सो आपको मुझे लास्ट 2-3 दिन पहले शायद कहीं एक सेशन में बोला है कि बिल डिपॉजिट के केस में क्या करें सर. देर आर बिल ऑफ 2012, 13, 14 आर पेंडिंग, or there are some DD which has not been presented yet. करेक्ट सर? उनके केस में क्या करने का सर? कुछ नहीं करने का सर. 2 प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूं. या तो क्या नॉन सीटीएस के टाइम पे 2015 के पहले नॉन सीटीएस था ना, क्लियरिंग में क्लियरिंग हो चुका होगा. आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि बीजी और बिल में असेट एंड लाइबिलिटी दोनों साइड इंटेक्ट पड़ा हुआ है अभी भी. सो आपके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि कहीं फ्रॉड हो जाएगा. बट हाँ, अगर कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है ना, आप निकाल पा रहे हैं तो मेहनत करिए, बाकी टाइम खोटी नहीं करने का. P&L अकाउंट में टेस्टिंग में आपको P&L क्या है सर? 5 मिनट बोलना जरूरी है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम क्या क्या हो सकती है? इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस,
penal charges are charges. अच्छा वर्ड बोला सर, penal not interest. अदर इनकम का पार्ट है, इंटरेस्ट इनकम का पार्ट. सर ये इतना इंपॉर्टेंट है सर. हेलो, ये सेग्रीगेशन करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर, आप सब ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कारों का लास्ट पॉइंट बोलता है 45I. कुछ याद है क्या? हेलो, मैं नहीं बोलूंगा. हाँ, एनबीएफसी, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में आरबीआई का एक रूल है that 50% of your asset should be involved in financial activities and 50% should be income of your should be earned from financial activity. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एनबीएफसी करेंगे तो काम आएगा आपके लिए, बिकॉज वी आर डूइंग नाउ. प्रॉब्लम इज इन केस ऑफ एनबीएफसी देयर आर सिस्टम ऑफ को लेंडिंग. आजकल सुना सुना लग रहा है क्या? को लेंडिंग 70% बैंक देगा, 30% मैं खुद दूंगा. तो जो बैंक से 70% आता है ना, 15% के ऊपर जितना भी इनकम है वो मेरा है. आई हैव गिवन अ लोन एट 25%, और मेरे को बैंक से उसको जिससे को लेंडिंग किया उसको 13% ही देना है. दिस 12% इज इनकम ऑफ माइन. व्हाट फॉर्म? इंटरेस्ट तो बुक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बुक्स में एसेट ही नहीं है. तो ये 13% क्या है? इट इज इन फॉर्म ऑफ कमीशन. नाउ किसी एनबीएफसी का मेजर बिजनेस आजकल को लेंडिंग हो गया ना, कि 4000 करोड़ तो को लेंडिंग से 500 करोड़ रुपए लेंडिंग से ही है. हाँ, इज इट वेरी करेक्ट? इट्स हैपनिंग इन द बैंक. अब प्रॉब्लम यह है कि आरबीआई बोलती है आपका बिजनेस ही डाइल्यूट हो गया है, बिकॉज राइट नाउ इट इज अ प्रॉब्लम. पेनल इंटरेस्ट, कमीशन एंड अदर इनकम शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट इनकम विच विल नॉट. इसको बोलते हैं 50-50 क्राइटेरिया. हेलो, हम एनबीएफसी में इसको वर्ड यूज करते हैं 50-50 क्राइटेरिया. सो 50% का क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो रहा है. एंड इफ इट इज नॉट फुलफिलिंग, यू आर नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू योर लाइसेंस ऑफ एनबीएफसी. वहाँ उल्टा होता है ना सर. अपन क्या बोलते हैं? 50% ऑफ असेट इज इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, द पर्सन हैज टेकन अ लाइसेंस अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस और नॉट. वहाँ उल्टा बोलते हैं अपन. यहाँ क्या कर रहे हैं? उल्टा है. करेक्ट? बस इनकम में चेक कर लीजिए कि बराबर है. सैम्पलिंग चेक करनी है. कैसे करेंगे सर? जितने इंटरेस्ट अकाउंट, मैंने बोला लोन चेकलिस्ट बना लो एक पेपर पे, कम से कम वेरीफाई कर लो कि सिस्टम में बराबर है या नहीं है. हेलो सर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई जग, सब जग जाना अगर पीछे कोई सो रहा है तो. एक लास्ट 3 साल से एक प्रॉब्लम हमने देखी और तब समझ में आया कि इसका बहुत ग्रेव इंपैक्ट है. सर, शॉर्ट रिव्यू सबने सुना हुआ है. एनपीए होगा, मैं वो बात ही नहीं करूंगा, आपको लग रहा होगा तो. इफ एन अकाउंट हैज बीन शॉर्ट रिव्यूड, उस केस में आपको जितनी चाहे रेवेन्यू लीकेज नील मिल जाएगी. हेलो, हेलो, जोर से बोलोगे तो ही बोलूंगा. हेलो, अगर कोई भी अकाउंट एक दिन एक्सपायर हो गया है, एनी कंसेशन गिवन इन दैट अकाउंट इज गॉन. हेलो, अब वो मेरा इंटरेस्ट वाला एग्जांपल याद है क्या? पहले वाला. हेलो, -4% जो है ना, हटा दो उसको. जिस दिन एक्सपायर हुआ उसी दिन से. हेलो, शॉर्ट रिव्यू इज नॉट अ फुल रिव्यू. तो एनी कंसेशन गिवन इन द अकाउंट शुड बी कंप्लीटेड एंड क्लोज ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सैंक्शन. तो जब तक शॉर्ट रिव्यू का फुल रिव्यू नहीं हो गया ना, उस दिन तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो. कोई सब लड़ेंगे आपसे कि सर बाद में आ जाएगा, बैक डेट से आ जाएगा. सर 31 मार्च में क्या बोला? बाद में देखता ही. बीजी इशू की, बीजी का रेट क्या है? 3% का. 3% कमीशन चार्ज करना है. उसको कंसेशन दिया हुआ कितना परसेंट? 50% का. 1.5% ही चार्ज करना है. बोले सब कब तक था? बोले सर कंसेशन 31 मार्च दिसंबर तक का ही था. उसके बाद जितनी बीजी जाएगी कार्ड रेट पे जाएगी भैया. तुमको परमिशन मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. बाद में ले लेना, रिवर्स कर देना. आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि मैं अगले साल तो तुम इसी ब्रांच का ऑडिट नहीं देने वाले हो ना. हेलो, ना तो फीस मिलने वाली है ना काम देने वाले हो. तो मुझे आज तक ही दिख रहा है 4 अप्रैल को क्या होने वाला है मैं नहीं देखूंगा. डन. सो मेरा 1-2-3 चीजें थी. गोल्ड लोन सर वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार तो 1 साल से तो झगड़े हो रहे हैं. मतलब मेनी ऑफ द पीपल हैज लेफ्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ गोल्ड लोन. उनका नौकरी खा गई आरबीआई. क्योंकि मरता कौन है? मैंने बोला ना अभी आपको, नीचे वाला. गोल्ड लोन का रोल ओवर वाला सिस्टम याद है? हर जगह होता है. मैंने आपको बोला डिस्क्लेमर में, आप भूल गया, आपने मुझे बताया ही नहीं. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन गोल्ड लोन के लिए दिया, बिकॉज द रीजन इज देयर वाज 600 अकाउंट ऑफ गोल्ड लोन. आई हैव सेलेक्टेड अ सैंपल ऑफ 20 अकाउंट्स. सब एरिया कवर करता हूँ तो 20 अकाउंट देखे होंगे. उसमें से 80% में 90% में गोल्ड लोन में रिन्यूअल का सिस्टम है. रिन्यूअल मतलब
मतलब क्या हुआ, 5 लाख का लोन है, रीवैल्यूड करके पैकेट भी नहीं खोले, दूसरा पैकेट नया डाल के उसके अंदर सेंक्शन लगा दिया, और गोल्ड का रेट तो रोज ही बढ़ रहा है। सो बंदे ने ना तो इंटरेस्ट का पेमेंट किया ना प्रिंसिपल का। गोल्ड लोन, नया गोल्ड लोन अकाउंट खुला, हेलो, नया अकाउंट खुला, पैसा गया सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट से कहाँ गया, पुराने गोल्ड लोन का रिपेमेंट। दो प्रॉब्लम है, एक तो विंडो ड्रेसिंग है और दोनों अकाउंट एनपी है, बिकॉज यू हैव गिवन अ न्यू लोन फॉर क्लोजिंग ऑफ एन अनदर लोन। इससे बड़ा प्रॉब्लम है, फ्रॉड है। क्यों सर फ्रॉड है? हाँ, वन एसेट हैज बीन फाइनेंस, कब सर? बाद में तो खत्म हो गया, पर एक सर्टेन पीरियड पे तो 2 बार कर दिया ना आपने, दोनों ही प्रॉब्लम है। अब उस केस में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बोला एक देखे 20 अकाउंट में 90% मिला। इफ दैट इज द प्रॉब्लम देन वी हैव टू इंक्रीज आवर सैंपल साइज। सो मैंने 20 की जगह 40 जोड़ लिया, तो 40 में भी 2 बार बढ़ाऊंगा सैंपल साइज। एक बार बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, अब बहुत हो गया, मतलब अब टाइम नहीं है, 4 दिन का फीस तो इतनी सी दे रहे हो, नहीं हो पाएगा। सो द 600 अकाउंट आई एम नॉट एबल टू चेक इट, व्हाट शुड डू? That 75% of the total portfolio is given in the form of gold loan, and we are, due to the limitation of time, we are not in positions to check all of the accounts. There are certain, because in the sample we have selected, this number of account has been found that there is a renewal which is not according to law. 40-50 अकाउंट को एनपीए किया, बाकी का ठेका मेरा थोड़ी ना है। So what we should do? So we are giving our opinion unless and otherwise considering gold loan. इसके अलावा जो है मेरे को नहीं पता। सेंट्रल ऑडिटर फोन किया, बोले डिस्क्लेमर दिया तुमने। बोला सर तो क्या करूँगा, मैं थोड़ी 600 अकाउंट को जाके चेक करूंगा। यू लुक एट योर, आप करो उसको अपॉइंटमेंट, जो करना है कर लो। इट वॉज मैटर ऑफ 3 ईयर ओल्ड, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। डिस्क्लेमर दिया, मैंने बोला ना आपको, लास्ट ईयर आरबीआई ने बोला 3 महीने में गोल्ड लोन का वेरिफिकेशन होना चाहिए, बिकॉज देर आर मल्टीपल अमाउंट हैज बीन आइडेंटिफाइड इन साउथर्न साइड। ऐसा नहीं है साउथ वाले सब जगह हुआ होगा, पर उधर ज्यादा हुआ। क्यों? उधर गोल्ड भी ज्यादा है, बिकॉज दे हैव अ प्रैक्टिस कि बहुत गोल्ड खरीदते भी हैं, उसके ऊपर लोन भी लेने का। सो गोल्ड ओरिजिनली गायब था। वन ऑफ द बैंक हैज अपॉइंटेड मोर देन 200 पीपल, इधर से ट्रांसफर करके 1.5 महीने के लिए पोस्टिंग ही वहां कर दी, बिकॉज आरबीआई का कंप्लाइंस है, एवरी क्वार्टर उनको गोल्ड लोन के पैकेट देखने हैं। तो आपको भी सैंपलिंग में, क्या आप गोल्ड लोन के पैकेट खुला सकते हो? हेलो, हाँ या ना? गोल्ड लोन का पैकेट देखा है सबने, कैसा होता है? 2 बार सील्ड होता है, वो दूसरी बार हमारे लिए ही है। फैक्ट है सर, मैं हो सकता है किसी मजाक की वे में बोल रहा हूं, पर हाँ यस वी कैन ऑपर इट, बट हाँ उस दिन तक की जिम्मेदारी, अगर वो नकली हुआ तो उसी दिन बोल देना, और असली हुआ तो भी उसी दिन आपको साइन करना पड़ेगा। जैसे आप कैश वेरीफाई करते हैं ना, मैं कैश वेरीफाई करता हूं, उसमें टाइम भी लिखता हूं सेकंड तक, इस टाइम तक ठीक है, उसके बाद क्योंकि सर करेंसी चेस ब्रांच दे दी एक बार 500-700 करोड़ रुपए का कैश, कैसे वेरीफाई करूंगा? सर बहुत इजी, कुछ नहीं, 500 करोड़ का कैश नहीं दे, जो बॉक्सेस होता है ना वो देखना है। अब उसके अंदर भी नकली हो तो मेरे को नहीं पता, वी हैव चेक्ड लाइक दैट ओनली। भाई खुले जो ओपन करेंसी है वो देखने हैं, बाकी नहीं देखना। सो उतना चेक किया, और वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होते हैं कि अभी आया अभी गया, तो मैं 4:15 तक चेक किया हूँ, तो वो भी लिखता हूँ। हेलो, सो अपने को सर कुछ नहीं, काम बराबर कर रहे हैं, वी आर गुड एट वर्क, बट हमको बचाने का काम करती है रिपोर्टिंग। आई एम गिवन अप टू 5:15 हो गया, आई एम क्लोजिंग इन 5.7 मिनट। मैम प्लीज अलाउ मी, आई कैन कंटिन्यू फॉर 10 मोर मिनट ना? सॉरी, अरे नहीं आई हैव अ फ्लाइट एंड आई नीड टू गो समवेयर एल्स एज वेल। सो मैं, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं मैंने मेजोरिटी कवर कर ली है, बट आई विल ट्राई टू कवर सो दैट आई विल नॉट मिस समथिंग। कैश कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक बैलेंस विद आरबीआई, एक चीज चेक कर लीजिए बैलेंस विद आरबीआई के केस में और अदर बैंक के केस में, मेजोरिटी में सब क्लीन हो गया है। पर अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा मिले कि असेट साइड में बैलेंस विद अदर बैंक, बस इतना ही चेक करना है, शॉर्टकट, फटाफट। जितना मैं फास्ट बोल रहा हूँ ना, उतना ही आपको फास्ट चेक भी करना है। बैलेंस विद अदर बैंक मिला है तो उसको बोलो सर बैंक स्टेटमेंट ले लो। क्या प्रॉब्लम, इतना जरूरी है? सर 2 बातें, मैं क्या बोला, मेरा काम चेक करना नहीं, मेरा काम क्या है? रिस्क कम करना है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को कंप्लाइन करना। अब क्रॉस कंफर्मेशन, सर आपको पता है फॉरेन सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक, उनका ऑडिट करने का तरीका ही जोरदार है। मैंने देखा उनका, वो क्या करते हैं 100% कंफर्मेशन मांगते हैं। किससे? मैं सर ये तो होता तो बात ही नहीं करता। 600 अकाउंट जिनको लोन एंड एडवांसेस दिया ना, उन सबको कंफर्मेशन भेजते हैं।
बिकॉज दे आर माई डेटर्स. हम भेज सकते हैं क्या? भेजो भले, 5 अकाउंट को भेज दो, कंफर्म बोलो 31 मार्च का बैलेंस चेक करके बताएगा. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? हेलो, ये मैंने भी 4 साल पहले पहली बार क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ सीपीए फर्म है ना वहाँ की, तो बिकॉज इट हैज बीन वेरीफाइड बाय सम ऑफ द सीपीए आउटसाइड इंडिया. यूएस फर्म, यूएस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, वो हर अकाउंट में उनका, सर बोलूंगा नहीं बिग फोर, पर उनका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज सो गुड ना बिग फोर का, सो दैट इज वाई दे सेंड एवरीथिंग. सो एक एक अकाउंट को बेचते हैं. आप भी 5-7 अकाउंट को बेच दीजिए, उसमें एक ये बैंक है, बैलेंस विद अदर बैंक. आई हैव फाइंड दैट वन अकाउंट हैज बीन सेव्ड फ्रॉम एमपीए थ्रू एसबीआई, मतलब थ्रू अदर बैंक. पॉसिबल है? सर क्या किया होगा मैं बता देता, 2 मिनट लगेगा केवल. एक ब्रांच का ऑडिट करा था, वहाँ क्या हुआ कि वन अकाउंट वॉज गोइंग टू बिकम क्लासिफाइज एन एनपीए बिकॉज ऑफ 31 मार्च, और मैं अगर मेरे ही ब्रांच में अकाउंट ओपन करके उसको लोन दे देता तो पता चल जाता. हेलो, अगर ऑडिटर देख लेता तो पता चल जाता. तो उसने क्या किया पता है आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अदर बैंक का अकाउंट था. सर ये छोटी छोटी चीज़ें शायद देखने का नज़रिया बदल देगा, इसलिए बता देता हूँ मैं. सो मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाया, उसमें कुछ विड्रॉल दिखा. 20 लाख का अकाउंट था, 15 लाख 12 लाख रुपए का कुछ डिपॉजिट ट्रांसफर हुआ. मैंने कहा सर ये 12 लाख कहाँ गया? बस सर वी हैव गिवन एन लोन इन अकाउंट, लोन इन विच द बोरोवर हैज रिक्वेस्टेड अस टू गिव द चेक नॉट ऑफ दिस बैंक. नेशनलाइज बैंक की इसकी वैल्यू नहीं उनके नज़रिए में बोरोवर के केस में, तो वो स्टेट बैंक का इस चेक मांगा मेरे से. मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या किसी जगह लगाना होगा. मतलब ओके सर. उनका क्या? तो दैट्स वाई वी हैव डिसबर्स द मनी थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक. ठीक है ना, कहाँ दिक्कत नहीं है ना सर? मेरे इंटर ब्रांच में दूं या वहाँ से दूं, मेरे से तो पैसा कम ही होगा. अल्टीमेटली एसेट 12 लाख से कम हुई और एडवांसेस बढ़ गया. एक साइड ऊपर नीचे ही हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ. मैं बोला ठीक है सर. मैंने कहा कौन सा लोन सेंक्शन किया? तब आया आदमी, 2 दिन तो पूछे ही नहीं कि कौन सा लोन सेंक्शन हुआ. हेलो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे तक वापिस बोल देता हूँ. एसबीआई में से डिसबर्समेंट किया, वहां का चेक दिया, और वही चेक मेरे अकाउंट में आके लग गया जो अकाउंट एनपीए होने वाला था. तो आपको क्या दिखेगा? क्लियरिंग दिखता है. क्या दिखता है? बाकी तो ट्रांसफर की एंट्री लगती कि आपने आप ही के बैंक में से ट्रांसफर लगाया, आप तुरंत पकड़ लोगे. अब क्लियरिंग पे चैलेंज करोगे क्या आप? हेलो, सो पता कैसे चलता है? मेरे को बाकी तो जनरली पता नहीं चलता. अब मैंने स्टेट बैंक का स्टेटमेंट लिया तब पता अच्छा प्लान है सर. दूसरा क्या हो सकता है? P&L पे इंपैक्ट आ सकता है. अगर वो क्या होता है कि कभी कभी इतने करंट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ठोके होंगे 5-10 साल से, और अपने किसी पिछले प्रोफेशनल कलीग ने उस अकाउंट को नहीं देखा होगा ना, तो उसका बैलेंस 10,000 50,000 जो भी पड़ा होगा वो जीरो हो चुका होगा. और हमारे क्या, वो एक्सपेंसेस बुक नहीं किया. सो एक्सपेंसेस बुक कराने का काम हमारा, एक एमओसी दे दो, काम हो गया बस. दैट्स इट. मनी एट शॉर्ट कॉल नोटिस और इन्वेस्टमेंट बोथ आर नॉट एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द ब्रांचेस इन इंडिया. क्योंकि वो आजकल है ही नहीं. 2014 के पहले पड़ा होगा इन्वेस्टमेंट, तो आजकल वो भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज कंपलसरी नाउ टू कन्वर्ट इनटू डीमेट. और डीमेट में कर दिया तो सेंट्रल ऑफिस पड़ा रहेगा. एडवांसेस की बात करते हैं, 10% से ज़्यादा. सर फास्ट चल रहा हूँ पर मैक्सिमम चीज़ें कवर किया है, ट्रस्ट मी. 10% से ज़्यादा एडवांसेस, बाकी के लिए सैम्पलिंग सेलेक्ट करनी है. टाइप ऑफ एडवांसेस, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, फोकस्ड ऑन फंड बेस्ड एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड. पहले नॉन फंड ले लेना, ऊपर नीचे ब्रांच पहले ही हो जाएगी कि आदमी को कुछ तो देखना आता है. बोले फोकस उस पर, क्योंकि उसको भी पता है तकलीफ है. सर नॉन फंड बेस्ड में एक बीजी के ऊपर हमेशा याद रखना, रेवेन्यू लीकेज निकलता है. बैंक गारंटी के केस में 2 तरह की गारंटी है, परफॉर्मेंस और. सर कहीं नहीं लिखा होता है कि परफॉर्मेंस है. गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना, वो नहीं बोलती कि मुझे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी चाहिए फाइनेंशियल. बोले बैंकर तुम जानो, मेरे को नहीं पता. ना किसी गारंटी में लिखा होता है, ना टाइप में लिखा होता है. तो बैंकर क्या कहता है? कस्टमर और बैंकर तो दोस्त है ना, भाई भाई है, रोज साथ में काम करता है 365 दिन. तो बैंकर के हिसाब से ऑल गारंटी आर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, नन ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी. और दोनों में कमीशन का गैप कितना आता है? 1% का. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी परफॉर्मेंस और कौन सी फाइनेंशियल है? हाँ बी, बस दैट्स इट. टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा. बहुत परफेक्टली एग्जांपल, बीजी ही पढ़ना पड़ेगा. क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल में? आप सबको पता होगा, पर फिर भी 2 मिनट बता देता हूं. एक ही डिफरेंस. हेलो, नहीं ऐसा नहीं. वो बोलते हैं कि अब रुक जाएगा, वहाँ खड़ा रहेगा, पर मैं भी तो बार बार आऊँगा ना सर. बीजी में डिफरेंसेस क्या है? द कंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस वेरी क्लियर. वापस रिमाइंडर है, कुछ नहीं, आपको सबको आता है. इफ द परफॉर्मेंस, इफ द बोरोवर, बिकॉज गवर्नमेंट विल से दैट इफ दिस बोरोवर विल नॉट परफॉर्म इज ड्यू टू, जैसे ड्यूटी, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज बनाना है, अगर ये नहीं बना पाएगा तो मैं बनाऊंगा, बैंक बोलेगा. ऐसा है क्या? नो.
if the borrower will not comply with the condition or he not complete the work, bank will compensate you for the loss which will be happen to you because of the delay of work. हेलो, तो आप परफॉर्म नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? परफॉर्म नहीं करने के लिए पैसा दे रहे हो. सो दिस इज अ परफॉर्मेंस. और फाइनेंशियल में क्या डिफरेंस है? इफ बोरोवर विल नॉट मेक पेमेंट टू दिस पर्सन, आई विल मेक पेमेंट. हेलो, बस इतना ही डिफरेंस है. 2-4 बीजी पढ़ लो, क्लासिफिकेशन पता चल जाएगा कि मैनेजर अच्छा था कि अपने लिए अच्छा है कि उसके लिए अच्छा है. करेक्ट ना? बस दैट्स इट. हाँ, एडवांसेस की बात है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो छोटी सी है. 2 मिनट मुझे पता नहीं दीजिए, मैं सब 5-10 क्वेश्चन ले लूंगा सर. फ्लो बन गया इसलिए फटाफट खत्म कर लेता हूँ. बट आई विल डेफिनेटली कम टू यू. क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन. मैंने एक बैंकर को एक बार ऑडिट आई थी मेरे पास, मैंने को कुछ 1200-1500 करोड़ की ब्रांच में 248 करोड़ रुपीस एनपीए दे दिया. 1200 करोड़ की ब्रांच में 240 करोड़ 48 करोड़ एनपीए दे दिए. बहुत जनों के फोन आएंगे, उसका छोड़ दो, वो कैसे मैनेज करना है? आपको आपका पहला इंटेंशन पहले दिन से पता चलना चाहिए. और अगर आप किसी ब्रांच के रेगुलर ऑडिटर हो बैंक के दूसरे साल में, तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो उनके पास पहुंच चुका होगा. क्योंकि अपनी आदतें तो वो की हुई है ना. सर आप रिव्यू लेते हो तो वो भी आपका लेते हैं, आपके बारे में पहले से पता है कि मानेगा ही नहीं, तो उनको पता है कि क्या क्या करना है. ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, 240-250 करोड़ रुपए एनपीए दे दिया. अब उस केस में हुआ क्या कि मुझे द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द बैंक फ्रॉम द मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट हैज कॉल्ड मी एंड सेड दैट रोहित व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई हैव नॉट कॉल्ड यू फॉर रिड्यूसिंग ऑफ एनपीए और एमएससी. मैंने आपको ये फोन करने के लिए बोला है कि सर व्हाट इज प्रॉब्लम इन माय ब्रांच. क्या आपने 1 साल में, क्या 5 साल से ऑडिट नहीं चल रही थी? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? दीज आर द अकाउंट विच यू हैव क्लासिफाइड अकाउंट्स कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर. क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैडम एक ही प्रॉब्लम है. बोले क्या? मैंने कहा मैडम देयर इज ओनली क्रेडिट, नो मॉनिटरिंग. यही होता है जब तक कोई अकाउंट, सर है ना, वहां इज्जत ही नहीं. मेरे को ऐसा लगता है बैंक में कस्टमर की इज्जत ही नहीं है. सही से पे करोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं. पीएनपी की रिपोर्ट आएगी तभी आपके फोन आएगा, सर पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो. बाकी तो सब रेगुलर चलता रहेगा तो आपको कोई याद, सो आपकी फाइल भी कोई चेक नहीं करेगा. बिकॉज देयर आर लॉट नंबर ऑफ अकाउंट्स, पहले पुराने को देखने, जो तकलीफ में उनको चेक करने और नए भी लाने. सो मॉनिटरिंग है ही नहीं है. बस इंटरेस्ट आ रहा है, पैसा जमा हो रहा है, तब तक आपका अकाउंट नहीं देखना. टर्नओवर कहां से कैसे आ रहा है कोई नहीं देख रहा. वेदर देयर इज अ ट्रायंगल विच इज बीइंग क्रिएटेड, कुछ भी किया, ईडब्ल्यूएस, आपको 2 चीजें 3 चीजें मैं आज बोल रहा हूं पढ़नी ही है, इतनी मान लेना मेरी. एक तो क्लोजिंग सर्कुलर. क्यों? क्योंकि आपको क्या क्या करना है ना बैंक में जाके, वो वहीं से पता चल जाएगा. 70 सर्टिफिकेट कौन कौन से साइन करने वो वहीं पता, क्योंकि अदरवाइज वो 5वें दिन लाके देगा ही देगा. इस बार भी यही होगा. तो उस सर्कुलर में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको साइन करने हैं. सो दैट, हाँ, क्लोजिंग सर्कुलर हैज दैट. सो आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या डेटा पहले दिन लेना है. तो ब्रांच मैनेजर को पहले दिन बता देना. और इंगेजमेंट लेटर में एक लिख देना, लाइन में बचाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांच बाकी प्रेशर आएगा. उसको बोले ना मैंने कि 5 दिन 7 दिन का टाइम मिला ऑडिट का, तो एंगेजमेंट लेटर या एंगेजमेंट लेटर में लिख देना. मैं हर बार लिख के देता हूँ और एक इन्फॉर्मेशन चेकलिस्ट भेजता हूँ जो लेटर आता है ब्रांच को. आज ब्रांच अलॉटमेंट मेरी एक फर्म में आ गया, बोला ब्रांच मैनेजर को फ़ोन भी कर दिया और उसको चेकलिस्ट भेज दी, और उसमें एक लाइन लिखी है, क्या, माई लिमिटेशन ऑफ पीरियड गिवन बाय द ब्रांच फॉर दिस नंबर ऑफ, जो भी नंबर ऑफ डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट यू विल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस चेकलिस्ट. हेलो, क्या फायदा है इससे? वो चेकलिस्ट इतनी बढ़िया है कि वो मेरी ऑडिट खत्म होने के बाद तक भी, हमारे पास तो हमेशा बढ़िया टाइम है. सर सेवियर है, हमको हमारा काम करना है अच्छे तरीके से, हमारी रिस्क, और कभी गलती से आया ना तो सर हमने तो मांगा था, दिए ही नहीं, हम क्या करें? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट हमको क्लोज करने के जाना पड़ा. बचाएगा. ठीक है, क्रेडिट की बात करते हैं सर. क्रेडिट में मुझे क्रेडिट अप्रेजल में मुझे यही चीजें हैं कि अप्रेजल का क्वालिटी चेक करना है. और अप्रेजल का क्वालिटी आजकल आपके पास का है ही नहीं. 50 लाख रुपए के लोन, 1 करोड़ के लोन ब्रांच में होते हैं. सो अप्रेजल आपके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आजकल हर जगह प्रॉब्लम, तरीका क्या है ना, एमसीसी, दूसरी जो आरएलसीसी, एसएलएल, एसएमईएलएफ, ये करके एक प्रोसेसिंग सेंटर बना दिया. तो अप्रेजल इज बीइंग डन एट अदर ब्रांचेस, बट चेक जरूर करना है कि उनका बराबर है कि नहीं, बिकॉज अकाउंट तो मेरा है ना. वेदर अप्रेजल इज डन करेक्टली. टर्नओवर 2 गुना ही है. किसी आदमी का टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ रुपए का, लोन दे दिया 25 करोड़ रुपए का. क्यों?
मैं बोला डीपी तुमने सोचा ही गलत पहले तो। एक तो तुम्हारे ने सैंक्शन नोट में लिख दिया कि 90 डेज का क्रेडिट मिलेगा डेटर्स में। कैसे 90 डेज के क्रेडिटर्स में तुमने 50 करोड़ के टर्नओवर पे 25 करोड़ की ओडी दे दी है, बताइए मेरे को तो। इज इट पॉसिबल? हाँ, डेटर्स के पैसे पे बैठेगा ही नहीं। क्यों? इफ देयर इज एन टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ रुपीस, आई विल डिवाइड इट बाय 4, 90 दिन, तो 12-12.5 करोड़ रुपए के डेटर्स हमेशा बैठेंगे। अगर स्टॉक बराबर नहीं हुआ तो 12.5 करोड़ के डेटर्स में 25% आप डिस्काउंटिंग और मार लोगे मार्जिन। तो अब आप बोलते हो कि एक साइड में तो आपके, क्योंकि स्टॉक स्टेटमेंट भी सब पार्टियों के ऐसे ही आते हैं आपके 90 डेज हर बार कंप्लीट हो जाते हैं, पर जब आप टर्नओवर देखो तो 2 ही गुना है। सो इसका मतलब क्या है? देयर आर कॉन्ट्राडिक्टी, किसी ने चेक ही नहीं किया। आपको एक एलएफआर में कमेंट देखना है, क्या बोला? वेदर द बोरोवर बैंक हैज रिसीव्ड एन स्टॉक स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ द पार्टी ड्यूरिंग द ईयर और नॉट। दूसरा कमेंट है, यहां तक तो सब लिख दोगे हाँ, वेदर द सेम हैज बीन वेरीफाइड एंड एनालाइज्ड बाय द ब्रांच ऑफिसर और नॉट। यहां लिख के आना, सब अपना कोई लगने वाला नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला बाद में, क्योंकि केवल साइन करते हैं वहां पे क्रेडिटर्स भी नहीं देता। तो आपने कैसे लिख दिया कि बराबर वेरीफाई कर दिया? एजिंग नहीं दिया, 5 नाम सैंपल डाल दीजिए उसमें कि एजिंग नहीं है, इट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वेरीफाइड बाय द ब्रांच ऑफिसर। बोले सर आप ऐसा क्यों? कोई नहीं देखने वाला, जब ब्रांच में जाओगे उसके बाद पता चलेगा आपने क्या लिखा है। करेक्ट ना? सो आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है वहां डाल देना, ये 5 कमेंट लिख लेना सर। 5 अकाउंट आपको देने हैं जिसमें स्टॉक स्टेटमेंट बराबर फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको ये तो लिखना है कि फॉर्मेट में नहीं है, उसके बाद ये भी लेना है द सेम हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वेरीफाइड बाय द, दैट्स इट। सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसबर्समेंट, प्री एंड पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन शुड बी कंप्लाइड। और आप, मैंने अभी बोला ना मार्च, इस मार्च के अकाउंट तो देखने ही देखने, उससे ज्यादा पिछले वाले मार्च में जो अकाउंट सैंक्शन हुए वो जरूर देखना। हेलो, द प्रॉब्लम वाज मेनी ऑफ द अकाउंट हैज बीन सैंक्शन लास्ट ईयर बट डिसबर्समेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन द करंट ईयर। अब वो क्या, पिछले ऑडिटर ने देखा नहीं क्योंकि डिसबर्समेंट की लिस्ट में आया नहीं, उसके टॉप 10% में आया नहीं, और आपने नहीं देखा क्यों? पिछली बार सैंक्शन हुआ था, आप क्यों देखोगे? वहां प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती। क्यों? क्योंकि पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन असेट ही नहीं आई। एक अकाउंट है, मेरे को सर पता चला, बिकॉज आई वाज टेकिंग अ सेशन इन वन ब्रांच, दे सेड दैट सर 1 साल से असेट नहीं आई पर पार्टी बहुत अच्छी है सर, हर बार पूरा बराबर ईएमआई भर रही है सर। 12 महीने से सर असेट नहीं आई, देयर इज अ डिले ऑफ असेट एंड पार्टी हैज गिवन अ लेटर टू द बैंक एंड द पार्टी इज मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट और ईएमआई। इनका यार बहुत अच्छी पार्टी है, फिर आपने एनपीए तो कर दिया ना, अच्छी है तो भी। नहीं सर, नो, क्यों नहीं किया? ये अकाउंट एनपीए होगा कि नहीं होगा? क्यों? नो असेट हैज बीन क्रिएटेड इन द हैंड ऑफ अ बैंकर। और डीसीसीओ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डीसीसीओ, क्या है ये? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ। हर ब्रांच में अगर प्रोजेक्ट लोन हुआ है, और प्रोजेक्ट लोन अगर हुआ है तो उसकी एक सैंक्शन में डेट लिखी होगी कि इस तारीख तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर ऑपरेशन में आ जाना चाहिए। अगर वो अकाउंट ऑपरेशन में नहीं आया तो कितने दिन में एनपीए हो जाएगा? 180, 90। हेलो, नींद नहीं आ रही सर? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है बस 5 मिनट में खत्म करना है। कितने दिन में? 90 और 180। आयरेक्नोम क्या बोलता है? If the DCCO has not been achieved by the branch or the customer on date and the DCCO has not been extended by the competent authority, the account will NPA on the next date of completion of DCCO itself. पर कोई नहीं देखता, कोई सिस्टम में नहीं डालता और सिस्टम ऑटोमेटिकली एनपीए नहीं करता है। ये आपका काम है एक्चुअली। सर मेरे को एक दिन पागल बना रहा था ब्रांच हेड 3 साल पहले, 2 साल पहले, वन अकाउंट ऑफ मोर देन 160 करोड़ वाज देयर, नेशनल हाईवे का काम करा था बोरोवर, दिसंबर डीसीसीओ था और शायद डीसीसीओ एनएचएआई ने एक्सटेंड नहीं किया इसलिए मैं भी नहीं कर पाया। कंप्लीशन तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइम पे होता ही नहीं है, तो जब गवर्नमेंट आगे एक्सटेंड करेगी तभी मैं कर पाऊंगा, तो मेरे पास नहीं हुआ। 31 दिसंबर को अकाउंट को एक्सटेंशन नहीं मिला, 31 मार्च तक वेट करके मैं गया ब्रांच में, सर डीसीसीओ कंप्लीट हो गया, आपने एक्सटेंशन करवा दिया क्या? बोले नहीं सर। मैंने कहा सर ये अकाउंट एनपीए नहीं होगा। बोले सर नहीं होगा, क्यों? बोले सर आप तो 31 मार्च को देखने वाले हो, 90 डेज कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने कहा यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? हेलो सर, फास्ट हूं पर बराबर जा रहा है कि नहीं? सर डीसीसीओ याद रखिए, 5 अकाउंट चेक करने जो प्रोजेक्ट लोन है उसका डीसीसीओ क्या है, वेदर द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड और नॉट। इफ इट इज नॉट एक्सटेंडेड द अकाउंट विल बिकम ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ एनपीए, सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन। अगर कंस्ट्रक्शन है तो 2 साल, रेगुलर है तो 1 साल, पावर ऑफ अ बैंक। पर मैं क्या बोला, एक्सटेंशन नहीं दिया तो बात करनी। डन। डॉक्यूमेंटेशन पे आप कमेंट कर लेंगे, नॉट मोर इंपॉर्टेंट। क्या बचा है अपने पास? क्विक मोर्टेलिटी
सर देखना है, कमेंट करना है, क्यों हुआ वो चेक करना है। लिख तो दोगे आप, पर कम क्यों हुआ है उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है। इसलिए आरओसी, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन, लीन मार्किंग, क्रेडिट रेटिंग बता दिया, रिव्यू रिन्यूअल। शॉर्ट रिव्यू के केस में एक प्रॉब्लम हर जगह आती है कि रिव्यू विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, शॉर्ट रिव्यू बिना डॉक्यूमेंट लिए। हेलो, नींद आ रही क्या? रिव्यू बिना पेपर के कर दिया और एक पेपर लगा रखा है कि द पार्टी हैज नॉट सबमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेंस द रिव्यू हैज बीन डन। शॉर्ट रिव्यू, एक्सटेंशन ऑफ टाइम हैज बीन गिवन। सर आरबीआई ने 2020 अगस्त 2020 का सर्कुलर है, इफ द रिव्यू शॉर्ट रिव्यू शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या नहीं है तुम्हारे पास? जीएसटी रिटर्न तो दे दो, इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट नहीं है, कोई बात नहीं, जीएसटी रिटर्न ले लो, सेल है कि नहीं है, परचेज है नहीं, प्रोविजनल ले लो, चेक कर लो, अपडेट लो, बिना पेपर की किया। मैं तो बोलता हूँ दो प्रॉब्लम है, एक तो रिव्यू ही नहीं है और एक रिव्यू विदाउट डेलीगेशन है। और रिव्यू कौन करता है? ब्रांच खुद कर देती है। भाई तेरा पावर था क्या 5 करोड़ रुपए का? हेलो, सो बियॉन्ड द डेलीगेशन और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है आपका। सर सोचना चेंज कर दो और ओवरऑल 360 डिग्री मजा आएगा ऑडिट करने में। सुनने में तो मजा आ रहा है ना सर? थैंक यू। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट जितनी भी है लेनी है। सर रेवेन्यू लीकेज का एक और पॉइंट है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल 30 नवंबर या 30 अक्टूबर, वॉट एवर द डेट, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द क्रेडिट wherever if it is applicable not received, then there will be a penal interest of इंस्पेक्शन पेंडिंग की डिटेल दे दे, इंश्योरेंस ओवरड्रॉन अकाउंट वैल्यूएशन और 3 ईयर। एनपीए केस में जरूर देख लेना। अगर एनपीए केस में एक चीज जरूर देख लेना सर, हर केस में एमओसी लानी है आपको ना। हर केस में क्या होगा, वैल्यूएशन में आपने जब भी एनपीए में D1 D2 यानी एनपीए फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 1 ईयर एज एन डेट, उस अकाउंट में सिक्योरिटी की वैल्यू चेक कर लेना सर। वहां अगर स्टॉक और बुक डेट की वैल्यू डली हुई है तो उसको हटवा देना, एमओसी दे दो उसकी भी। हेलो, क्यों? हाँ वो क्या है, सिस्टम है। मैं बोला ना, गार्बेज गोज इन गार्बेज गोज, भाई आ जाएगा जाइएगा। मैंने सिस्टम में एनपीए स्टॉक का जब लास्ट स्टॉक स्टेटमेंट डला होगा वो डेटा कंटिन्यू है। सो असेट पूरी बिक गई, ऑक्शन हो गया, आज अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा, लिटिगेशन पेंडिंग है, डिस्प्यूट चल रहा है, पर स्टॉक और बुक डेट की वैल्यू चमत्कारिक रूप से अभी भी इंटैक्ट है। तो 25% प्रोविजन और 40% प्रोविजन किया हुआ है, उसको जीरो करना पड़ेगा। असेट अगर स्टॉक होता तो बैंक पागल है कि 2 साल तक नहीं ले लेता। कोई चैलेंज करे कि सर एक कॉन्करेंट ऑडिट में सैमवी ब्रांच के मेरे पास आया था 4 साल 5 साल पहले, सर कार लोन पड़े थे 3 साल तक, इंश्योरेंस नहीं है, वेरिफिकेशन किया नहीं कार का। मैं बोला सर इसको जीरो कर दिया। नहीं सर कार है, रात को सपने में आई थी क्या कर रहे हो सर? लॉजिकल आंसर डिस्प्यूट करो। मैं बैंकर को बहुत साफ साफ बोलता हूँ, सर बहुत तरीके से डिस्कशन करूंगा और ऐसे सबमिशन लूंगा जो एक्सेप्ट करूंगा सर। आई एम नॉट रिजिड, मैं बहुत रिजिड नहीं हूं, मैं हर चीज़ सुनने के लिए तैयार हूं, पर ठीक ठाक डिस्कशन करना ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बचे। बाकी आप मेरे से 20 तारीख तक की भी ऑडिट क्लोज करवाओगे तो मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं, कोई मुझे कह नहीं पाएगा, ये भी पक्का है। मेरे पास ऐसे 100 तरीके हैं, तो मैं उनको बोलूँ सर अच्छा डिस्कशन करेंगे बहुत तरीके से। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, स्टॉक और बुक डेट का वैल्यू जीरो, प्लांट एंड मशीनरी है, बिक चुकी है, अभी भी वैल्यूएशन पड़ी हुई है, टर्म लोन दिया हुआ है, आज मान लीजिए नहीं है, उसको WDV 5 साल हो गए, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 100 करोड़ 10 करोड़ लिया था, 10 करोड़ होगा क्या आज? भंगार में जाएगी 1 करोड़ रुपए में। भाई मैं वैल्यूएशन नहीं करवाया, या तो वैल्यूएशन करवा लो, नहीं करवाया तो कम से कम इतना काम तो करो, एक्सेप्ट करना है तो WDV ले लो, 15% का डेप्रिसिएशन लगा लो 5 साल का, आज उतना वैल्यूएशन दे दो अगर आपको सपोर्ट करना है। बाकी मेरे हिसाब से तो कितना है, दैट्स इट सर। 4 क्वार्टर की आपको मूवमेंट रिपोर्ट लेनी, दैट इज PNPA। हेलो, ये सैंपल लेना है, 4 क्वार्टर की मूवमेंट लेनी है, 3 VLOOKUP लगाना है। सिंपली VLOOKUP लगा के देखना है कि 3 क्वार्टर में कंटिन्यूस अकाउंट क्या चल रहा है, PNP में 60 to 90 डेज में आ रहा है, पर चमत्कारिक रूप से वो चौथे क्वार्टर में गायब है। ऐसा पैसा आ गया, ऐसा चेक कर लो कि कहां से आया। डिपॉजिट हैज टेकन इनऑपरेटिव टू, सर एक रिस्क सबसे बड़ी है डिपॉजिट में, इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव और डोरमेट टू इनऑपरेटिव। अगर ऐसा कुछ किया है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 3-5 चेक कर लेने का, मिले ठीक, बाकी में फ्रॉड हुआ होगा तो हमें जिम्मेदार नहीं है, पर हमने देखा है इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। ले लो अकाउंट नंबर, आपने चेक किया है, बात खत्म है। हाँ बस बात खत्म। अदर लाइबिलिटी कंटिजेंट रिव्यू मॉनिटरिंग, इंटरेस्ट चेक ले लिया, P&L अकाउंट, प्रायर पीरियड आइटम ऑफ P&L। सर एक ये P&L के केस में बताना भूल गया, एक अकाउंट में मेरी कॉन्करेंट ऑडिट ब्रांच में 6 महीने से पैसा नहीं दिया बैंक ने। एक बैंक का रूल है, वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट जब होता है तब फीस देती है। मैंने बोला मतलब ठीक भी मेरे को ही कराना, वहाँ तो मेरा काम है, तो ठीक भी मेरे को कराना है तब जाके पैसा देता है। मैं बोला सर ठीक है, और वो बोला कि सर आप लिखती या तो 2 काम करा करो, फीस टाइम पे चाहिए तो लिखो कम, आपके स्टाफ को बोलो, और लिखोगे कम तब तक तो समय लगेगा,
अब 90 दिन की उनकी टाइमलाइन है, तब तक कंप्लीशन नहीं होता, तब तक पैसा भी नहीं देते। अब नहीं देते, मैं उनको हर ब्रांच में मेरे को बोलता हूँ भाई 31 फरवरी में पैसा मत देना, मेरी प्रोविजन तो कर दे। तो देख लेना कॉन्करेंट ऑडिट फीस का प्रोविजन 12 महीने का हो गया कि नहीं हो गया, और अगर ज़्यादा पेमेंट हो गया तो पिछले साल का प्रायर रिपीट में डाल देना। सेम विद रेंट, रेंट हैज़ नॉट बीन डेबिटेड, क्यों 5 साल पहले जमा करा दिया था। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंडिचर है, 2-4 मिनट का टाइम निकाल के लगेगा कि आपको P&L का ऑडिट भी आपने, ठीक है ना सर। बीजी के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट अर्न, कमीशन अर्न ऑन बीजी should be divided as per accrual basis only. If the BG has been given for the period of more than 1 year, the commission should be treated as an unearned income in the asset side, liability side. हेलो, ये हर जगह गलती है, कोई देखता नहीं है। मेरा P&L ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है। गोल्ड लोन एक्सेप्शनल रिपोर्ट लास्ट है, ये कुछ फोटो लेना, वैसे WIRC शायद अगर पोस्ट करेगी कि नहीं, मुझे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये पहले का काम है ब्रांच में जाने से, इंटरनल, कॉन्करेंट, स्टेक, RBI और रेवेन्यू ऑडिट। पॉइंट टू बी रिमेंबर, लास्ट साइड, दैट्स इट। हेलो हेलो ओके। प्लान प्रिपेयर द अपडेट LFIR ऑन डेली बेसिस, डिस्कस पॉइंट विद द टीम। आपके पॉइंट, क्योंकि आप काम नहीं करते हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं करता ब्रांच में, अपने स्टाफ अच्छा काम करते हैं, तो उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो उसी दिन शाम को ले लीजिए। डिप्यूट द पॉइंट विद डेली बेसिस। सिंगल पर्सन के लिए LFIR बोल दिया, आपको लग रहा है ना मैं थोड़ा थोड़ा जो PPT में था वो बता दिया। डेप्यूट अ सिंगल पर्सन फॉर गिविंग क्वेश्चन, डिस्कस, आंसर डिटेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 2 बातें याद रखना सर। रिमेंबर टू पास MOC, कहीं LFIR में ऐसा पॉइंट लिख रहे हैं जिसमें लगता है कि MOC है तो दे दीजिए। अटैच एडिशनल डॉक्यूमेंट, जहाँ जहाँ लगता है घोष जलानी, ऑडिट रिपोर्ट, LFIR, MOC, डोंट हेजिटेट टू राइट डिटेल्ड इन द आंसर एंड गिव टू सेंट्रल ऑडिटर। फर्स्ट ब्रांच का LFIR सेकंड ब्रांच में जरूर ले लीजिए। विद दिस I'd like to conclude my session for today. Hope I would be able to share a little bit something about the LFIR. I am thankful for your support and sorry to bother you a lot. If you have any question, I'll be able to, if the Vice Chairman will allow me to, Ma'am will allow, so आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना भी खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछिए। हाँ दे दीजिए ना, एक बार माइक दे दीजिए तो पता चलेगा, ज़्यादा अगर जोर से बोलेंगे तो वैसे ही बोल देंगे। बोलिए। लेबर, सॉरी लेट सर, अदर, वैसे तो क्या है ना सर, ऑडिट ओपिनियन में हमारा रिस्क बनता है कि हर जगह एवरी लॉज एंड रेगुलेशन शुड बी कंप्लाइड, पर अगर आपका इंप्लीमेंटेड है वो ब्रांच लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, सो आप सेंट्रल ऑडिट का कमेंट नहीं कर सकते। सो पॉलिसी इज मेड एट अ सेंट्रल ऑफिस लेवल और सेंट्रल ऑडिटर विल मैनेज एट इट। मेरा व्यू है ऐसा। यानी हाँ प्लीज गो अहेड सर। IFOCR में क्या करना चाहिए सर, कमेंट में सैंपल क्या, वहाँ एक मैट्रिक्स बनानी है। अब मैट्रिक्स में आपको सैंपल बराबर से लेने पड़ेंगे। सो पहले दिन ट्राई कर लीजिए कि आप सैंपल में मैट्रिक्स क्या बनाने वाले हैं। सो वो पार्ट एंड पार्शल है, वो देना ही पड़ेगा हमको, वो बिना उसके सेंट्रल ऑडिटर और ODT क्लोज नहीं करवाएगा। और ICF सर पहले तो ये पता नहीं, मैंने बोला कंट्रोल क्या है वही नहीं पता, तो उसका चेक कैसे करूँ। तो क्या क्या कंट्रोल है, वैसे मैंने बता देता हूँ 2 बातें। इंटरेस्ट का देखो, आपको कंट्रोल 4 चीज़ें चेक करनी है, असेट एंड लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में मैंने बोला अभी इंटरेस्ट किया, वो एक सैंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BG का आप काम ने किया है, मैं क्या बोला, काम अच्छा करो सब कुछ हो जाएगा। इंटरेस्ट लिया, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले लो कि मैंने ये इंटरेस्ट का चेक किया है। 3 अकाउंट, BG कमीशन चेक किया, चेक कर लो। एक्सपेंडिचर में ऑडिटर का किया। लीगल एक्सपेंडिचर, कोई अकाउंट NPA है तो उसमें लीगल वो खर्चा वाला जरूर जाके देखना सर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी अपन लिखते हैं इट हैज बीन इन्फॉर्म बाय द ब्रांच दैट देयर इज नो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। भाई मैंने क्या किया खुद से, वो तो उसने सब कुछ कर दिया, तो घर पे बैठ के साइन कर देंगे हम। मैं क्यों पता करना है। लीगल एक्सपेंडिचर और एडवोकेसी फीस अगर किसी भी ब्रांच में है, पेमेंट हो रहा है तो उसको बोलो बिल निकाल के दे। बिल निकालोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है किस चीज़ का पेमेंट है, पता चल जाएगा कि क्या लाइबिलिटी है बैंक के अगेंस्ट में, किसी ने चेक किया। क्योंकि बैंकिंग ऑम्बड्समैन के बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं लोगों के ऊपर, बैंक के ऊपर। सो इनकम एक्सपेंडिचर, असेट के लिए एडवांस वेरिफिकेशन किया, अगर कोई पॉइंटर मिलता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, सैंक्शन पार्ट, डिसबर्समेंट पार्ट, आपका काम हो गया। लाइबिलिटी में डिपॉजिट में प्रॉब्लम मिला है कि नहीं मिला, कितने नंबर ऑफ सैंपल लिए उसमें से कितने में प्रॉब्लम मिली, ICO पर काम हो गया। डन सर। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड क्रेडिटर्स जो DP कैलकुलेशन करते हैं उसमें सैंक्शन लेटर में मेंशन नहीं होता है। मैं आपकी क्वेश्चन हो गया, मैं बता देता हूँ सर आंसर फटाफट से, आपका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, हर बैंक के लिए दे दूंगा। सर देयर आर 2 बैंक्स व्हिच हैज स्पेसिफिक थिंग्स।
पहले तो प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको बोलता हूँ कि 2 बैंक में प्रॉब्लम है, वो क्या बोलते हैं, आजकल एक तीसरा और हो गया है, नाम नहीं ले सकता, सबको पता है। वहाँ क्या बोलता है, डीपी अप टू क्रेडिटर्स अप टू अ सर्टेन लेवल विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ। हेलो, सब है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको तकलीफ होने वाली है इससे। बोले सर वर्किंग कैपिटल का मोरल क्या है, क्या वर्किंग कैपिटल लोन कैसे मिलता है सर? मैं समझता हूं मेरा जितना पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन देके मैंने क्या किया, बैंक को पैसा। अब यहां तो ड्यूअल फाइनेंसिंग है। हेलो, इफ 100 रुपीज ऑफ स्टॉक लेस क्रेडिटर्स 40 रुपए के, पेड स्टॉक इज 60, उसके ऊपर मार्जिन लगा के मुझे डीपी देनी है। सब बैंक इतना करी पर कुछ बैंक नहीं करी। वो क्या करते हैं सर, क्रेडिटर्स अप टू सर्टेन लेवल विच हैज बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ असेसमेंट शुड बी डिडक्टेड। बट इनका प्रॉब्लम, मुझे सब कुछ चलेगा सर, चलो कोई बात नहीं, ड्यूअल फाइनेंसिंग तुम कर रहे हो कर लो, देयर इज नथिंग इन सैंक्शन नोट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सर ने बोला वही है, मैं उसको रोका, सर डोंट बॉदर इट, मैं रोक लिया, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर बता था। वहां सैंक्शन नोट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने क्रेडिटर्स कम करने हैं, क्यों करने, मतलब सब ऑडिटर ही देखे ऐसा। सो वी हैव फाइट विद वन ऑफ द बैंक, उसके सेंट्रल ऑडिटर मेरे अच्छे मित्र थे, उन बैंक में उस अच्छा काम कर दिया सर। एक बैंक, 2 में से एक का प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया। पॉइंट नंबर 14 ऑफ सैंक्शन नोट, उस बैंक में जाके देख लेना, उसमें क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है फरवरी 2024 का एक सर्कुलर इशू करवाया उस सेंट्रल ऑडिटर ने कि द बैंक शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, दे शुड गिवन द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अमाउंट अप टू सर्टेन लेवल विच हैज बीन कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिटर्स। आप करो ड्यूअल फाइनेंसिंग पहले, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। और मैंने बोला ना, भूल गया मैंने आपको बताना 2 चीजें, क्लोजिंग सर्कुलर, लोन पॉलिसी। सर आप लोन चेक कर रहे हो, आपने पॉलिसी नहीं देखी, 2 लिख लीजिए, क्लोजिंग सर्कुलर, लोन पॉलिसी ऑफ एडवांसेस, सर्विस चार्ज सर्कुलर, लास्ट ईयर LFAR और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। ये 5 आपके लिए रामबाण है, भगवत गीता है, पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना ऑडिट। लोन पॉलिसी क्या है, कैसे देना है लोन, वो पता ही नहीं ना, आप बोल रहे हो कि हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं सर मैं भी आपके जैसा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं खुद को ही बोल रहा हूं बस। लोन पॉलिसी, क्लोजिंग सर्कुलर, सर्विस चार्ज सर्कुलर, आपको नहीं पता कितने चार्जेस लगने ही पता ही नहीं अपने को। सर्विस चार्ज में एक प्रॉब्लम है सर आजकल, एनी रिक्वेस्ट गिवन बाय द बैंक, एक आपने एग्जांपल फाइनेंस कोई करवाते होंगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा सर सैंक्शन आया 9.5% का, पार्टी ने बोला नहीं नहीं मेरे को दूसरा बैंक 8.5 में दे रहा है, अपना बैंकर क्या बोलता है, सर रुको ना मैं वापस रिकमेंडेशन करता हूँ, आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे 8.5 में दूसरी जगह मिल रहा है, आप 8.5 में दे दीजिए। तो वहाँ बैंक में एक आजकल सब जगह है, एनी एडिशनल रिक्वेस्ट गिवन टू द बैंक शुड ऑल्सो बी चार्ज इन 1 लाख रुपीज मिनिमम। हेलो, सैंक्शन में तो पता है ना 50% एडवांस लेते हैं आजकल प्रोसेसिंग चार्जेस और 50% बाद में, वो भी चेक कर लीजिए और ये पॉइंट भी चेक कर लीजिए। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स की बात करता हूँ, अब 2 बैंक का पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट दे शुड एक्सेप्ट इट हाउ मच क्रेडिटर्स हैज टू बी मेंशन। सो उन्होंने किया है तो मानो, नहीं तो नहीं मानने का, कहीं नहीं लिखा हुआ, तुम्हारी लोन पॉलिसी बताओ वहाँ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है तो मैं नहीं मानना, बी रिजिड, कोई फर्क नहीं, कोई करने नहीं वाला, लड़ लो सर, लाके दे दो, इंटरनल सर्कुलर है तो लाके दे दीजिए सर। आप सर मैंने क्या बोला, उन PNB सेंट्रल ऑडिटर ने क्या किया, डिस्प्यूट ये किया कि सर व्हाई दिस थिंग हैज बीन गिवन टू द ऑडिटर ओनली, मेरे ऑडिटर को जाके तुम बोलते हो नहीं नहीं ये तो हमारे अंदर है, ले, तुम लिख दो सैंक्शन में, तो उन्होंने अपडेट करवा दिया ये काम, इट शुड बी पार्ट ऑफ सैंक्शन नॉट इटसेल्फ। नेक्स्ट, सो assume that there is no हाँ सर आपका क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। फैसिलिटीज वो सिस्टम अपने आप नहीं लेता बहुत बार, हाँ तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा गाइडेंस। सर प्रोसेसिंग फीस मैं बोलता हूँ सैंपल चेक करने पड़ेंगे आपको, मैंने बोला BG कमीशन, नॉन फंड प्रोसेसिंग चार्जेस ना, PF प्रोसेसिंग फीस नॉन, सर सैंक्शन नोट है सर, आप क्या करोगे सर, नहीं लेता एक्चुअली, जब नहीं लगा है ही नहीं, वहाँ अकाउंट ही नहीं बनता ना सर, जिस दिन सैंक्शन बनता है अकाउंट ही नहीं, अकाउंट कब बनेगा, जब BG ओपन करूंगा। प्रोसेसिंग फीस तो केवल अगर क्यों पूछा सर ने, इफ देयर इज ओनली नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी हैज बीन गिवन, इट इज द केस, जब फंड बेस होगा नॉन फंड होगा तब तो कवर कर लेगा सर, उस टाइम पे पूरा डेबिट कर देगा। हेलो सर, CC अगर OD है तो नॉन फंड बेस्ड फंड बेस्ड दोनों पे PF चार्ज कर लेगा, पर केवल नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी अगर दी होगी तो उस पर क्या होता है, अकाउंट ही नहीं खुलता है। हेलो, सो मैन्युअली सिस्टम चार्ज करता ही नहीं है, कमीशन चार्ज कर लेगा कब, जिस दिन BG चलाई होगी, पर प्रोसेसिंग चीज के लिए क्या करने का, तो आपका यही काम है क्या, इस साल में जितने केवल फंड बेस्ड, अगर बड़ा अकाउंट है, छोटे में तो वैसे भी सैम्पलिंग में निकालना पड़ेगा, बड़ा अकाउंट है तो चेक करिए कि करंट अकाउंट में उनका करंट अकाउंट जरूर ओपन किया होगा, क्योंकि उनका डिपॉजिट बनता है, 25% मार्जिन भी तो लेना पड़ेगा ना BG के लिए, तो उसके लिए जरूर ओपन हुआ होगा।
सो वहाँ आपको मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा. डन. Thank you so much for your patience listening. I'm deeply obliged and thankful Thank to you you. so much, Rohit sir, for Thank you. fantastic, engaging, brilliant and interactive session. Requesting everyone to carry one more round of applause. In spite of his busy schedule, he made it a point to come all the way here and give us the practical solutions and cover everything so comprehensively for LFAR. So looking forward to see you all tomorrow morning, and thank you once again.